Jai Hind to everyone. So the topic of today is: can one be a successful, profitable trader in the long run? The answer might differ from person to person. So I'll throw this open to first of all to Kirit Bhai who has suggested this topic. Kirit Bhai, what will be your answer for it and Am- why? Amit, Amit bhai, just let me also add some starting comments before Kirit bhai takes over. So, as far as a trader's life is concerned, historically there is a saying that 95 to 98% of the traders are losing traders over a longer period of time. Now, what makes it, what brings it in you that can you be that 5%, 2% of that 100%? What could be the mistakes you guys a normal trader does और वो क्यों वो मिस्टेक्स को रिपीट नॉर्मल ट्रेडर्स करते हैं इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं साइकोलॉजी होती है रिस्क मैनेजमेंट होती है एंड ओवर नेक्स्ट वन एंड हाफ आवर द पैनल ऑफ स्पीकर्स विल हेल्प यू विद देयर एक्सपीरियंसेस ऑन इन जो मार्केट में उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे आपको बताने की कोशिश करेंगे कहाँ वो गलत हुए हैं अपने एक्सपीरियंसेस में और क्या गलती नए ट्रेडर्स को बाजार में नहीं करनी चाहिए किरीट भाई ओवर टू यू आफ्टर यू वी विल हैव कमल भाई एंड देन अभिषेक स्पीकिंग Thanks, Vishal. Thanks, Amit, for inviting me as a speaker. Well, the topic says, can one become a successful trader in the long run? So I would just like to rephrase it. Can everyone become a successful trader? Now, you guys are going to hate me for this, but have the patience, hear me out. The answer is no. Now, that is like, being hit by a big blow. But the answer is, in reality, is no. I'll give you the reasons what I believe. I've been in this business for over a decade and a half, almost 15 years. Earlier, also, I mentioned I was a losing trader for about 5 years. Now, why am see? It's like anyone can enter this arena. Okay, you may enter trading for whatever reasons. It's an open field where anyone can come, just like a game of cricket, where एक building में अगर आप देखो तो तीन टीमें होती हैं. Now, I'll just quote a small example. One of the greatest trader, Richard Dennis, was the best commodity trader way back in 70s. Now, Richard Dennis had a childhood friend by the name William Eckard. William Eckard was a genius, a mathematician who was teaching. तो उसने एक दिन कहा, they used to always have this argument that Richard believed that anybody can become a trader. And Eckhart believed that to become a trader, you need a special talent. I'm sure many of you guys must have heard about this particular story, but the ones who have not heard, I would just like to refresh it. So this argument went on for a very long time, and then one fine day, Richard was having a drink in the afternoon. He just called up Eckhart and he said, "Boss, let's put an end to this thing. हम क्या करते हैं? We place an ad in the newspaper. We invite anybody can apply for that thing. We'll have a basic IQ test which has to do nothing with stock market, and then we'll take it further from there. हम उनको train करेंगे. After training, we give them our own money, okay? And let's see so that whether one can or one cannot, the answer will be clear." So they place an ad in Wall Street inviting ये अभी Richard Dennis was like a god. It is like Rakesh Junjunwala saying, चलो I'll train. तो लाखों में सब लोग पहुंच जाएंगे. They conducted a basic IQ test and उसके बाद they had interviews. Now, during the entire process, they finalized about 50 odd traders. Now, the background of these were they were not from the market. Okay, you had क्या कहते हैं उसको an accountant, a barber had applied for it. So people from various different, a chef was also there. What they did was they trained them for about 2.5 weeks, where जहां उनने सब कुछ बताया. This is the entry rule, this is the exit rule, this is the stop loss, this is how you calculate position sizing, this is what risk management is. At the end of the program, they gave them their own personal money and told them you can trade, but you will only follow these set of rules. You cannot deviate from the rule. If you make more money, if your returns are good, we'll add more money to your capital. But if you lose after a cutoff point, then you're out of the program.
Now they continued this exercise for 3 years. But the moral of the story kya hai? It is said that they trained about 40 odd traders in the 3 years. Unfortunately, in the long run, today on the global arena, you see you have Jerry Parker of Chesapeake Capital, Saleem Abraham, and there's another trader who got into some wrong company and he went behind bars. So of those people, of the 50 odd people, barely 4 5 are the ones who made a name for themselves. And in fact, majority of them stopped trading. यही रिचर्ड डेनिस था who to his I mean it's been said that Dennis turned $1,200 to $400 million in a span of 10 years, which was an unblemished record achieved by nobody. He was one of the greatest traders of the world. So much so even George Soros approached him that, let's trade together. अब वो सिखाने के बाद भी, I mean, in the long run, the story happened that many of them gave up trading. Now, what was the reason? But there were a couple of reasons. एक होता था कि they had a system where they used to buy a 20-day high breakout. Okay, you buy a 20-day high breakout with a stop loss of 10-day low or 2 ATR, whatever is the lowest. You go and short 20-day low and the stop loss is 10-day high or 2 ATR, whichever is the lowest. I mean, if you think this is some holy grail, it's not. It doesn't work anymore because we've tested and we've seen it. Western, Kirit bhai, just interrupting you. Not many people will understand over here what is 2 ATR. If you can also explain these words as well, that would be really helpful for everyone over here. sure. ATR is nothing but the range of the market or जो volatility आप कहते हैं उसको. You take a standard period, let's say the currently Nifty's range is about 350 points over a 20-day period. So which simply means that the average high minus low movement of Nifty can be 350. That's the average. Okay. It could be on one fine day, it can be 150 also, kabhi 500 bhi hota hai. All the software have calculation of ATR, and ATR is a very powerful tool when you use it as a stop loss. Okay, even we use it for most of the system. Up coming back to the what I was saying was a 20-day high. Now breakouts have very high failure rate, breakout and breakdown. So whenever it went up, तो कभी नीचे आ जाता था. The problem was they couldn't handle the losses. So in fact, once when Dennis was interviewed, he said, I can publish my trading rules on the first page of a newspaper, but I can guarantee at the end of third day, 90% and above will stop using it. Why? The system that Dennis used had a winning rate of just about 27%. और अगर वो गलती से ट्विटर में आ गया तो उसको चोर बना देंगे, इसको कुछ आता नहीं है, because we all want to be right. So the problem what happens is the need to want to be right is where things start taking a different direction. In life, same as in life, same is the case with trading. There are phases when you go through good phase, there are phases when you go through bad phase. Now, I've been mentoring globally for the last 4 years from various different background of people, okay, and I have seen basically, I have a sample size of about 125 odd, some of the best brains globally, and some of the even the most average brains. तो पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि people go into the market with an expectation. And I keep saying very often that, don't think that the market owes you money. Second is the want to be right. You have to get, I mean, I can give you cases where I was talking to one trader and he says, I have a system win rate of about 55%. So I asked him, if you have 5 losing trade in a row, will you take the next trade? So he tells me, because I have a system win rate of 55%, the next trade obviously has to be a winning trade. That's the level. Why? Even if you have a system win rate of 50 plus 56%, you can easily have 10 to 12 or even 15 losing trades in a row. Please understand, over the long term averages, that is when it will balance out 50-50. After the sample size is broad enough. So nobody wants to accept losses. Everybody wants to be right. You want to make money every day, every week, every month, every quarter, every year. कौन से धंधे में ऐसा होता है? And then we blame the markets. Then we blame the war.
If markets are not volatile, how will one make money? Markets are supposed to be volatile. You have to get one thing very clear. Again, you're going to hate me for this. To become a successful, profitable trader on an annualized basis, it takes minimum 5 to 6 years. Please go and ask the ones who have been successful. It could be one movie wonder also, जैसा वो who was that actress in Lagan. It was just a one movie wonder. There are so many cases in history. You have to go through the grind. You have to bear the pain. It is extremes of emotion. The day you make money, you're very happy. The day you lose money, you're exactly 180-degree diametrically opposite. On the other side, you just want the bloody thing to get over. You say, nahi, ye nahi hota. You have to endure that. Any sportsman you take, you see Michael Jordan, you take any cricketer, take Tendulkar, take Viv Richards. Everybody go through that phase. Have you ever realized? But the problem is everybody wants a formula. I'll tell you the toughest part in trading is what? The easiest part is the entry. Because the perception is, हमें लगता, supposing if a stock makes a bottom at 100, and if you are lucky enough, I'm using the word lucky on purpose because nobody can nail tops and bottoms except in the long run except for liars. Even if luckily you enter at 100.20, is there a guarantee that 100 is the bottom? No. वो 100 भी तोड़ के 90 भी जा सकता है. The second challenge what you face is where do I exit? उसको काउंटर करने के लिए क्या कर रखा है? You have set profit targets. I mean, what are these profit targets? No. Kirit bhai, I'll just interrupt you over here. So typically, what happens is I have been doing this for quite some time in past, and then I realized where I was going wrong. होता क्या है कि entries are pretty perfect. Entries are very perfect. Lower bottoms पे more or less दो एक आधा % ऊपर नीचे entry मिल जाती है. But the moment what happens is most of the guys what they do is the moment they see फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकेंड रेजिस्टेंस ऑन द चार्ट दे फील के ये इसके ऊपर नहीं जाएगा और वो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेती है. तो आइडियली व्हाट हैपेंस फॉर अ डे ट्रेडर वो 2% 5% में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और फॉर अ पोजिशनल ट्रेडर 20% 30% दे बुक देयर प्रॉफिट एंड उसके बाद में देन दे एंड द स्टॉक रॉकेट्स फ्रॉम देयर एंड द स्टॉक गिव्स अ मल्टीपल x 2 times 3 times return and they are not able to catch the bigger rally. So this, how does one actually try to cope this problem? And I believe most of the speakers would be having this problem. Though we have over a period of time been able to overcome this problem, but I would love to hear from you how when you were losing trader for 5 years, how did you cope up with this Well, problem? this problem everybody faces, Vishal. But when you asked me this question, there were two nouns that you used. Entry तो फिर भी मिल जाती है. Now, when you say फिर भी मिल जाती, perfect. It is you are entering with a fixed mindset. Okay. When you come to resistance, support and resistance. What if every time frame will have a different support, a different resistance? तो वो तो तुम देख रहे हो जो तुम्हें देखना है. देखो, फर्स्ट यू हैव टू गेट वन थिंग वेरी क्लियर. किसी को ये नहीं पता है whoever the person is, even if it is Warren Buffett or Sikota or Rakesh Jujunwala, कि how high or how low a stock can go. You will only have in 1 year 8 to 10% outlier trades. और ये पता रहता नहीं. अगर मुझे मालूम, जैसा I'll tell you, Saregama showed up in our system at something like 380. The stock went to 3,300. I entered at some 650, 700 odd. Did I know 3,300 jayega? Did I exit at 3,300? No, I didn't. I exited earlier. There were some who exited at a much better rate. So you have to stay with those 5 to 8 to 10% outlier trade, which nobody knows. Even if you just forget that Taregama. अगर आप निफ्टी का भी, if you see the movement when it be the bottom at 15.7 odd, cash nifty I'm talking. अगर आप एक 1.5-2% का भी स्टॉप लॉस रख के उसको ट्रेल करते बॉस, इवन इफ यू वुड हैव एंटर्ड 16,000, चलो वो तो पूरी दुनिया तो 15,800 में आ गई सोशल मीडिया में.
कह रहा हम तो इतने होशियार नहीं है कि 15-8 पे पकड़ सकते, चलो मैं 16, 116, 200 में भी लिया. If you would have given that sufficient volatility room for that based on what the volatility was, and you would be trailing, was you would have made 1,500 points. I know back testing ये लोगों के सिस्टम में 1000 पॉइंट नहीं बनते निफ्टी में. But what is the difference? Why don't you think this way that if Rakesh was in the same trade, or let's say some very good trader was in the same trade, क्या वो वही करता? जैसे ही ऊपर जाता है हमको डर लगती है हम काट देते हैं, और काटने के बाद फिर वो विक्रम और बेताल वाली कहानी होती है. वो कहता ना तू मुंह खोला और मैं चला, वही वो स्टॉक तुमको बोलता है, तू मुंह खोला और मैं चला. You have to stay with the trade, but then there for every action there's an equal opposite reaction. बहुत से टाइम ये भी होगा कि 100 की ली हुई चीज 125 जाएगी, you are very happy 125 की जो अभी 108 आ जाएगी. And even चलो hypothetically you set profit, I'm always against profit target. Even hypothetically you set profit target, yeah, if you have a system which has a 60% win rate, and if your risk reward is 1:1.1, 1:1.2, साल के एंड में पैसा नहीं बनता है. Do the maths and see for yourself. आप सिंपल रिवॉर्ड को बढ़ा रखो. At least aim it at 1:3, 4, the higher the better. So simple maths goes this way. If you risk 100, if you end up making 400 rupees, or let's say 300 rupees, okay, so basically you have made a provisioning for the next 3 losing trades. मतलब अगर आते 3 ट्रेड भी गलत गए तो भी you are still at even Stevens. Toughest part is not exit. I'll tell you from my experience and from what I have seen after having taught so many of them. The toughest part is cutting your losses. नहीं होता है, क्योंकि हमको हमेशा उम्मीद होती नहीं ये स्टॉक ऊपर जाएगा. नहीं, पिछले बार SBI had given me a lot of money, so again SBI will do that. I'll share a secret with you. The secret is winning stocks go in your favor right from the word go. वो पलट के नहीं देखते. लूजिंग स्टॉक जहां आपने एंटर किया वहां रिटर्न. बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे सपोजिंग यू लेट्स से यू गो एंड शॉर्ट निफ्टी, लेट्स से 17,350, जहां से आपने शॉर्ट किया वहां से 70 पॉइंट नीचे. आप क्या बोलेंगे नहीं वॉलेटिलिटी है, मैं 200 पॉइंट का मूव देता हूँ, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस सकता हूँ. बट ऐसा भी तो हुआ है. If you bought Nifty at 17,200, it never looked back. It straight it went to 17,440. Go check your trading journal. You will get the answer there itself. But losses cut नहीं होते. The simplest of system will do exceptionally well in this market. But we want to further complicate it with reassurances, validation. क्या लगता है दूसरे को पूछ के, उसको खुद को पता है जो आपको बताएगा क्या लगता है. And if you think you have a system and you're done with, that's the second fallacy. बाजार कब, when systems change, markets dynamic structure change, बोल के नहीं होता है. All of a sudden you will find yourself out of place. You need a lot of patience, you would need to build that mental capability कि नहीं ये होता है. Also I hear very often, wish I had a big capital, I could have done it. और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है. आप 10-15 लाख को फिर भी डबल हो जाएगा if you're a good trader. आप 1 करोड़ में करके दिखाइए, पहले 1 करोड़ डिप्लॉय करके दिखाइए और बाहर निकल के दिखाइए. नहीं होता है वो. यू नीड अ डिफरेंट माइंडसेट. क्यों? अगर आप 10 लाख में 1% का रिस्क ले रहे हो, दैट इज 10,000. बट ऑन अ कैपिटल ऑफ 1 crore, if you're taking a 1% risk, that's amounts to about a lakh of rupee. Your thought process will just, अरे लाख रुपए का नुकसान लग रहा है मेरे को, तो that takes over. यहाँ आपको टिकना है, रहना है. You'll get hit, you'll get whipsawed, you'll have losing weeks, losing months, but you have to stay the course. So it's not easy year on year. पहले जैसे मैंने बताया, it takes 5 years to become a successful profitable trader. आधा तो तुम्हारा वही खत्म हो गया. And the last another important reason is undercapitalization. आदमी आता है 25,000 लेके, 20,000 लेके, मैं ऑप्शन खरीदूंगा, ऑप्शन डबल. सी मार्केट्स आर नोन फॉर बिगिनर्स लक. वो हो भी जाते हैं,
फिर वो 25 गया, चलो कोई बात नहीं, मैंने बनाया था, फिर ट्राई करेंगे। फिर वो एम्बिशियस होके फिर थोड़ा 25। नो, यू नीड टू बी वेल कैपिटलाइज्ड, you need to know that this is a losing business. So my ending comment is no, not everyone can become a successful, profitable trader over the long run. Thanks, Amit. Thanks, Vishal. Very well. Kirit, Vishal, एक second. Kirit bhai, you have mentioned about trading journal. I have reiterated what I have tweeted 3 years back. Okay, how one can make a trading journal. Vishal, go ahead. Thanks, Amit. Thanks, Kirit bhai. Always good to hear. आपकी words of wisdom are very good. So we have Kamal bhai as well. Kamal bhai, आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर? If you can give your views on the same. थैंक यू एवरीवन। ऐसा है विशाल भाई, एक्चुअली क्या है कि ये सारा मैटर जो है ना, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग जब तक नहीं कोई घुसता ना, तो वो लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये होता है कि मार्केट में जो प्राइस एक्शन या जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, करते हैं, प्राइस मूवमेंट में जो भी चलते हैं, ये हम ढेर सारी बुक्स में पढ़ते रहते हैं सुबह से शाम तक कि 20-30% ही टेक्निकल या फंडामेंटल होता है और 80% साइकोलॉजिकल होता है। और फिर भी हम अपनी नाक बीच में घुसेड़ते रहते हैं। हमारा सिस्टम कहता है कि भाई तू बाय कर ले और तेरा टारगेट यहाँ है, तू यहाँ निकल जाइयो। बट वो है ना कि हमें अपनी आदत छोड़नी तो है नहीं, तो हम वही सब में लगे रहते हैं पूरी लाइफ के अंदर। जितने टाइम भी हम ट्रेडिंग करते हैं यही सब करते हैं। कीरत भाई ने जैसे अभी बोला था ना कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, अकॉर्डिंग टू मी योर रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है, वही सारा कुछ होता है आपके लॉन्ग टर्म ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर बने रहने में। मेनली वही है। बस होता क्या है, सिस्टम में आप जाते हैं, आप सबसे पहले अपने आप की तो अपनी साइकोलॉजी देखो कि आप अपने साइकोलॉजिकली कहाँ फिट बैठते हैं, कैसी आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। आई मीन टू से इंट्राडे में घुसोगे, स्विंग में घुसोगे, पोजिशनल में घुसोगे, लोगों को कुछ पता ही नहीं होता। आधे ट्रेडर तो इन द बिगनिंग, जैसे कहते हैं ना, बच्चे के माइंड में शुरू में भर दो और बड़े होने तक वो वैसा ही रहता है। तो आधे ट्रेडर्स तो मार्केट के अंदर आपको वो मिलेंगे जो ट्रेडर बनने ही नहीं आए थे, जो इन्वेस्टर थे, और जो जरा सा प्रॉफिट हुआ वो बाहर हो गए, और जरा सा लॉस हुआ तो वो ट्रेडर बनने आए थे और इन्वेस्टर बन गए। तो उनके माइंडसेट खुद का ही तैयार नहीं रहता और वो आगे तक उसी को फॉलो करते रहते हैं। आई मीन टू से अगर आप ट्रेडर बनने आए हो तो सबसे पहले आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब सिस्टम बना लिया आपने तो उसमें अपनी टांग नहीं घुसेड़नी, अपनी नाक नहीं घुसेड़नी कि मुझे क्या करना है, सिर्फ वही करना है जो आपका सिस्टम बताता है। अब सिस्टम में भी आप कर सकते हो क्लासीफाई, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए असल में लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होने के लिए। तो कमल भाई जस्ट इंटरप्ट कर रहा हूँ। या बिफोर बिफोर आप बोलते हो, आई मीन क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे नए ट्रेडर्स हैं, आते हैं, जो लिस्टनर्स होते हैं। हर बंदा, मोस्ट ऑफ दी सक्सेसफुल ट्रेडर्स एंड ट्रेडर्स हु हैव बीन इनटू द मार्केट फॉर मोर देन अ डेकेड टॉक अबाउट या सिस्टम्स। अब लोग, और जो नया ट्रेडर होता है उसको सिस्टम क्या होता है उसको समझ में नहीं आता है। सिस्टम बनाना कैसे है, सिस्टम के ऊपर कैसे वर्किंग करनी है, बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, अगर आप उसके ऊपर भी 2 मिनट 5 मिनट अगर उसके ऊपर भी आप बोल सके तो दैट वुड बी रियली। देखिए, मेनली तो सबसे बड़ा जो आप सिस्टम बनाने की जो बात कर रहे हो, सिस्टम तो किसी भी तरीके से हो जाता है। सिस्टम तो कहने का मतलब होता है, सिस्टम मीन्स रूल्स। यू हैव टू डिफाइन योर रूल्स कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। अब फॉर एग्जांपल आपको एक बात बताऊंगा मैं, मेरा एक जानकारी में बंदा है, वो निफ्टी में ट्रेड करता है, और मैं कहता हूँ उसको कि तेरा सिस्टम क्या है। वो कहता है यार मैं रोज 8:45 क्वाइन हेड टेल करता हूँ, हेड आ जाता है तो मैं बाय रखूंगा, टेल आ जाएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा। वो कहता है मैं जहां भी बाय करता हूँ 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, एंड मैं आपको उसका जनरल शो करूंगा, वो साला मुझसे ज्यादा कमाता है। तो ये उसका सिस्टम है, अंडरस्टैंड। तो मेनली तो बात यह आ जाता है कि नहीं, आप कुछ भी तैयार कर रहे हैं, किसी भी बुक्स पढ़ेंगे ढेर सारी कि भाई तुझे पुल बैक ट्रेडर बनना है, तुझको ब्रेकआउट ट्रेडर बनना है, तुझको मोमेंटम ट्रेडर बनना है, ये सारी बुक्स में तो पढ़ लिया जाता है। बट फॉलो कहाँ करना है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ मैंने एग्जिट हो जाना है, वो चीज कोई नहीं सोचता है। अब आईटीसी की कल परसों बात हो रही थी, तो उसमें यह था कि 210-20 पे उसने सिग्नल, मेरे सिस्टम ने सिग्नल दिया कि यू हैव टू बाय। आंख बंद करो, मुझे एक मूविंग एवरेज देखनी थी,
जो जो मैं फॉलो करता हूँ, उसके ऊपर आके जैसे ही क्लोज हुआ मैंने बाय कर लिया। मेरा टारगेट था 257 रुपए, मैं बाहर निकल गया, दैट्स ऑल। अब उसके 270 मेरा एक अगला हर्डल है इसका, उसके ऊपर क्रॉसिंग देगा, देन आई विल बाय अगेन। तो मेरा क्या हुआ, मेरा एक सिस्टम हुआ जिसको मैंने फॉलो किया। अब मैंने उस रिस्क रिवार्ड को पकड़ा और अपना कमाया और बाहर आ गया। नेक्स्ट डे कुछ और देखेंगे। तो एक सिस्टम बेस तो आदमी तब बनाता है, पहले अपने आप को खोजो कि तुम्हें करना क्या है। मतलब सबसे पहले तो अपनी साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी ना, दैट व्हाई व्हाई यू आर इन द मार्केट, कि आप कितना कमाना चाहते हो। कोई हो सकता है कोई 1,000 या 2,000 डेली का बना के बहुत खुश है, और कोई 2 लाख 5 लाख 10 लाख बना के भी खुश नहीं है। तो सिस्टम डिपेंड करता है, जैसे भी कीरत सर ने कहा था ना कि 5-10 लाख से कमाना बहुत आसान है और 5-10 करोड़ पे कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो सिस्टम भी उसी पे बेस्ड होता है कि आपको सिस्टम कैसे बनाना है। और लेकिन सिस्टम बनाना, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसके लिए तो आपको कोई एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होगा ना, जो आप कोई ऐसा कुछ कर रहा होगा। साइकोलॉजी तो कम से कम आपकी हो सकती है ना। अब कोई बंदा होता है वो SGX निफ्टी गिरा हुआ देख के उसकी अब मैं क्या कहूंगा कि उसको कुछ और हो जाता है, तो उसको, उस बंदे को करना ही नहीं चाहिए यार काम। उसको अपना सिस्टम वो तैयार करवा भाई, तू जो इंट्राडे ट्रेड कर सके। लाइक मैंने अपने फ्रेंड के बारे में कहा, वो कॉइन टॉस करता है, तो वो उसने अपने इंट्राडे ट्रेड का सिस्टम बना रखा है, वो भी एक सिस्टम है। यू कांट से कि वो सिस्टम नहीं है। वो सिस्टम इसलिए है क्योंकि मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये कब बढ़ जाए कब घट जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। बस इतना होना चाहिए कि मेरा सिस्टम जो कह रहा है मैं वही करूंगा, क्योंकि मार्केट भी हमारी तरह सेंसिटिव होती है। मार्केट भी बिल्कुल हमारी तरह सेंसिटिव होती है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अपने फोकस करना है अपने सिस्टम पे। तो कमल भाई, अगर मैं आपको मतलब एक आपकी बात को सम अप करने की कोशिश करूं, तो हाँ जी। क्या आपका ये कहना है कि जिस ट्रेडर को जो चीज कंफर्टेबल है उसको वही करना चाहिए, उसको अपनी ट्रेडिंग जर्नल में जाके चेक करना चाहिए ओवर 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ पीरियड, के कौन या से किस टाइप के ट्रेड्स के अंदर वो ही हैज बीन प्रॉफिटेबल, और किस टाइप के ट्रेड्स में ही हैज बीन लूजिंग मनी, और किस टाइप ऑफ ट्रेड में ही हैज बीन लूजिंग बिग मनी और मेकिंग बिग या मनी। वो तो उसको बेसिकली, अपनी वही हाँ, साइकोलॉजी और अपने सिस्टम के साथ जो उसका कोलैबोरेशन जहां बेस्ट मैच हो, उसको खुद सर्च करना पड़ेगा। अपने ट्रेड बुक में सर्च करे, अपने ट्रेड्स में सर्च करे, मेंटली सर्च करे। मेंटली भी सर्च कर सकता है। अगर कोई ट्रेड में इंट्राडे ट्रेड करके किसी का बीपी ऊपर नीचे होता है, तो भाई तू मत कर ट्रेड, उसको तू पोजिशनल कर ले, क्वांटिटी कम कर ले। तो कमल भाई यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। साइकोलॉजी की आपने बात की, हर या हर ट्रेडर की अपनी रिस्क एपेटाइट होती है। किसी की बिल्कुल। किसी की 1,000 रुपए की इंट्राडे की एपेटाइट होगी, किसी की 10 लाख की होगी। तो या जो 1,000 रुपए वाला है उसको ये नहीं देखना है कि 10 लाख रुपए वाला, इतना जो 10 लाख रुपए डेली का कमा रहा है उसको देख के अपना एग्रेसिव रिस्क नहीं लेना है। जिसको यू हैव टू लुक एट योर पॉकेट, योर रिस्क एपेटाइट, एंड अकॉर्डिंगली आप जितना नॉइज से दूर रहेगा नया ट्रेडर, वो ही विल बी सक्सेसफुल मेकिंग मनी। Yeah, I या can I add a point here on system trading because we do a यस lot of किरण जी, system. यस किरण जी। See, first of all, ऐसा है, you have to find your edge. So I'll tell you, you buy above a 4-day high, it works well. The question is, you will ask me then what will be the stop loss? What if I told you the stop loss is, let's say, hypothetically, you exit at, let's say, 2-day low. अब आप बैक टेस्ट करोगे, इट मे शो फैंटास्टिक रिजल्ट, पर आप ट्रेड करने जाओगे, ज्यादा पर्सनालिटी मिसमैच आप कभी नहीं हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आपको पहले ये दिखेगा, अरे यार मैं इतना क्यों दूं। So tailcoating somebody's system, that's exactly what Richard Dennis said. You have to, of course, I think the gentleman who spoke before me, Amar Bhai, sorry, what's his name? I didn't get his name. Vishal ji? कमल भाई, कमल भाई। कमल भाई, हाँ। कमल भाई ने वो कॉइन टॉस वाली बात बताई, वो बहुत से लोग को मजाक लग रहा होगा, but I'll just shed some light. Tom Basso, one of the top traders of the world, a market wizard, was conducting a seminar wherein he said, entries don't make a difference. So one of the respondents said, which means by your statement, even if you toss a coin or आप trade low, जैसे कमल भाई बता रहे थे, so you should still end up being profitable if you have a robust risk model. So Basso said, your question makes sense. Let me try it out. Tom Basso ने $1 million का अकाउंट बनाया जिसमें ही ट्रेडेड 7 different markets like commodities, stocks, indices, ये
एंड हिज रूल वाज वेरी क्लियर, हेड आएगा तो मैं लॉन्ग करूंगा, टेल आएगा तो आई विल गो शॉर्ट, एंड रिस्क असाइन्ड वाज अबाउट अ क्वार्टर परसेंट और 1% जो भी है, एंड ही सेड आई स्ट्रिक्टली फॉलो द सिस्टम. You'll be surprised to know at the end of the year that the head and tail system generated a profit of about 14 odd percent, 14 to 16 odd percent. बताएं. तो ये भी होता है, बट चीज ये है, सबको सिस्टम चाहिए. ओके, एवरीबडी इज स्वेयर्ड बाय सिस्टम. From my little experience, I can tell you, when this every system in this world go through a losing streak. ऐसा कोई system नहीं बना है which will only give you winning trade. If somebody says that, he's blatantly lying. I've also heard people saying that I have a system तो ट्रेंडिंग मार्केट ले एक एंड नॉन ट्रेंडिंग मार्केट ले एक. बॉस, हाउ द, व्हिच मींस यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेडिक्टिव मॉडल. तुमको कैसे मालूम है आज ट्रेंड कर रहा है तो कल वो नॉन ट्रेंडिंग हो जाएगा? इट इज नॉट. The problem will happen when the system goes through losing phase. And I have seen over 90% will chicken out when it goes through losing phase. नहीं यार, ये नहीं चलता है. और गलती से अगर तुम्हारा दोस्त पैसा बना रहा है तो फिर गई भैंस पानी में, तुम पक्का One thing, छोड़ दो. one thing, Kirit bhai, I'd like to add here. Everyone thinks they can go through drawdown until drawdown knocks on their door. Yes, absolutely. Kid, but there is also a story about Morgan Stanley where they hired 15 fund managers and a monkey to throw a dart, and monkey was. Yes, I mean, if Sir, that, please add that to. exact, Yes, sir. Please add on to that story, na. मुझे exactly याद नहीं है. मैं वो स्टोरी नहीं, पर मैं आपको एक अच्छा गुरु मंत्र देता हूँ. My trading changed when I read Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman. It's been a life changer. Please पढ़िए, start boring लगेगा, मुझे गाली भी देंगे, पर आगे अगर आप ट्रेडिंग में अच्छे करें, you will thank me. So even he said, you know, I mean, the prostitutes were called and asked to choose the list of stocks at random. Kirit bhai, can you tweet the same thing for everyone's understanding for better part? This thing? Yeah, sure, I'll tweet, but it's a very famous book where he has openly said, where Dr. Daniel Kahneman has openly said, कि भाई, you know, he says, मैंने last time के भी spaces में आए थे, when preparation meets luck, that's the best opportunity. He says to succeed, hard work लगता है बॉस. हाँ, आप ये मत सोचो कि मैंने लक बोल दिया तो आज दिन अच्छा है, किसी ज्योतिष या जुपिटर सैटर्न का ग्रह देख के आप करने लगे तो लग जाएगी आपकी. Okay, well, lots of hard work needs tons and tons of luck. That's where it's achieved. He says to be successful, you need luck. To be very, very successful, you need lots and lots of luck. But preparation has to match that thing. I mean, I know some very good traders. They have a very good system, but there are times when nothing works. There are times. So if you think, अगर आपको जो भी समझ में आता है, जैसे एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट होता है, जो पहले आधे घंटे के हाई के ऊपर लोग लेते हैं, लो के नीचे बेचते हैं. ओके, तो यू गो, यू सी, यू एक्सपेरिमेंटेड, and you ask yourself, can you handle that pain? Can you handle 15 losing trades in a row? I faced 15 losing trades in a row. I didn't stop trading. What saved me? The risk model. You never know which trade is going to be winning, but unfortunately the problem is we all want to be right. We all have very defined RR ratios, 1 is to 1.21. Very seldom I see somebody saying about 1 is to 3, 1 is to 4. मैं किसी का एक tweet पढ़ रहा था. He said, I spoke to one trader. He goes right about 30% of the time. His RR is 1 is to 6. I mean, that's fantastic. Easily he's one of the most successful trader. 30% सही जाने पे भी you can make money. Get that thing. You can make killing amount of money. But the problem is, can you hold? तो go find out what really works for you. क्या चीज चलती है? You have to experiment. पेपर ट्रेड मत करिएगा. एक्सेल शीट बहुत अच्छी लगती है. There is no emotion in Excel. The actual test is when your money is on the line. जब पैसा लगेगा ना, जब गाली देंगे ना आप लोग हमको, कुछ भी बोलता है उसको कुछ आता नहीं है. That's the common statement I see on Twitter. 2 ट्रेड गलत गए, फालतू है, इसको कुछ नहीं आता है. You want everything, but you don't want to give anything. Also, so, yeah, sorry. Yeah. So, Kirit bhai, sorry to interrupt you. We all talk about system and risk management, but major problem
also what lot of traders face is on the position sizing. मतलब ठीक है आप we all talk about we have been listening to everyone talking about 2% का या 2 दिन के लो के नीचे like you are talking about exit करना चाहिए. See, Everyone I has said sort of that's an indicative model. Huh? I I mean said, yeah see, that's the indicative model, not that it people will works. I'm not saying that it it's a works. holy grail, not that it's हाँ, a holy grail, but yeah हर आदमी का हर ट्रेडर का एक सिस्टम के अंदर एक स्टॉप लॉस इज डिफाइंड. But what if his position is not sized properly? How does so one decide on that's the how do, major reason. Na? That's the yeah major how does reason why one traders. decide Yeah, to yeah. what would be the right position sizing for him? Correct. So that's one of the major reason why people chicken out. आपने एक स्टॉक के मूवमेंट के बेस पे ये देख लिया चलो ये चलेगा एंड इफ द लास्ट ट्रेड इज अ विनर फिर तो पक्का आप यू आर ट्रेडिंग ऑन ओवर कॉन्फिडेंस यू थिंक इज गोइंग टू वर्क फॉर यू एंड देन थोड़ा आगे पीछे तो डर लगती है. So you have to follow a simple rule is that people say 1%, but according to me 1% is too high. I'm not talking about Nifty, I'm talking about stocks. Okay. So you basically have to see your data, how your systems have performed. So one rule that you can do is you start with, let's say, so what I do usually, let's say I'll start with a quarter percent. If the trade goes wrong, so 0.75 का मैं 0.6 कर दूंगा. If the trade goes wrong, 0.6 का मैं 0.5 कर दूंगा. If the trade goes wrong, 0.5 का मैं 0.3 कर दूंगा. I keep cutting my size. And similarly, when I go right, accordingly I break it upwards. So at the end of the day, and see when we assess our risk, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुपी वैल्यू लगाते. See the volatility of the market. जैसे निफ्टी का 350 का रेंज है. You are going to, I mean, intraday trader can't be keeping a stop loss of 30, 40 odd points more than that, right? He'll be keep it much lesser. So you also have to know how basically see it all comes back to having an entry exit rules, and within that you can incorporate your risk strategies. And I think where trading psychology is concerned, we have one gentleman by the name Dr. Srinivas. I think please add him as the speaker. I've read some of his tweets are humorous and he can definitely add value on this topic. Sir, we can ask him to send us a request. We will accept the request. We don't have any issues with that. Amit bhai already विशाल आवाज नहीं आ रही. In the meantime, we have dumb trader Abhishek also, and Kamal bhai also had some query or some suggestions. Kamal bhai, you can go. Abhishek, then you can go. अमित भाई मैं बस एक ही चीज कहना चाह रहा था. ये कीरत भाई साहब अभी कह रहे थे ना कि तो मुझे एक मितेश भाई हैं, मितेश इंजीनियर, उनकी कोई एक चीज उन्होंने कभी इसी चीज पे कोई डिटेल बताई थी कि आपको कोई भी ट्रेड में घुसना हो तो सबसे पहले व्हाटएवर पोजीशन साइजिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ कि 20% से ज्यादा कभी भी इनिशियल कैपिटल एक स्टॉक में एक ट्रेड में नहीं घुसेड़ता. और जब तक मैं उसका 1% पा ना लूं, अपना 1/1 का आरआर ना आ जाए, उसके बाद अपने T1 के बाद ही मैं उसमें एक 20% और ऐड करता हूँ. लाइक दिस मैं उसको स्केल अप करता हूँ. That is pyramiding. वो हम लोग pyramiding करने चले गए. Yeah, that's what I am saying. Yes, absolutely right. Abhishek, both Abhishek, killer trader and dumb trader. Oh yes, hi. Hello. Hi. Hello. Abhishek bhai, you can go first. Okay, okay. Yeah, I think based on like how to become a successful trader, or there are, I mean, there are actually so many multiple things at play. See, first of them, I think, I mean, a lot of people have spoken about, like, I mean, the RR, then about the position sizing, even, like how you execute your trade, even so that is important. Like what, see, it is very, I mean, you can have a system, but then having a system, and then, and then you actually come to trade it, you realize that executing is, I mean, it's a very tough. Whatever your trading system is, if you can't execute it properly, then it will be very tough for you to do anything in the market. So whatever you are trading, I mean, it should be so easy to execute for you that like you should not have any trouble across all market conditions. So that is a very important factor. So what I have seen, even like, I mean, see, people love trading Bank Nifty,
But if you ask me, I used to trade Bank Nifty about 6 5 years ago. I completely left it, and the actual reason was because of the execution, because there were so many slippages. Whatever, I had a system. I tried to trade it. There were so many slippages, like like the actual thing that I was getting, the actual results, and like what was happening, as per the back test, was very very different. So then I realized that like, executing the system is tough. Then obviously I shifted to Nifty. I found it easier, so I've been doing it now for so many years. So I think that like whatever system you're trading, even that is very important. And the second thing is about the risk management. What I've seen again, one thing is, like you can say that, you can have a 20% stop loss, 30% stop loss. But see, one is a hard stop loss that that you have put in your system, and then there is a soft stop loss, that like what strategies you create. So those strategies are so risk defined that like whatever happens, it could be a gap down, gap up, whatever, you will not lose more than 20%. Like people will buy options, they will say, okay, we'll put a 20% stop loss. When it opens against you, maybe in a gap down or a gap up, it becomes 50%. You say, okay, ठीक है यार, 100 रुपए का ऑप्शन 50 रुपए हो गया है, अब तो क्या करते, जीरो तक वेट कर लेते हैं, या तो जीरो होगा या तो हीरो होगा. ठीक है. So there are so many facets to trading. If you do this, then you will not survive. So you have to tackle all these things. You have to tackle psychology, risk management, system, position sizing. There are many many facets, and it takes time for you to learn all that facts. And frankly, I think minimum you need 3 4 years to learn that. If you survive it, more or less, आप उसको कर लोगे. But yes, but I would say, people don't survive markets because they learn this a lot later, and by that time पैसा होता नहीं है. ठीक है. So that is what I think. विशाल भाई, आपने सिस्टम की बात कही थी. एम आई ऑडिबल? Yeah. Yes, yes, Dr. Sahab. देखिए साहब, कैसा है ना, मुझे जो समझ में आया है कि बिफोर एंटरिंग, प्रायर टू द ट्रेड, अगर आपके पास 4 चीजें सिंपली क्लियर है, तो आप सिंपल उसको बोल सकते हैं कि आप सिस्टम में हैं. व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, एंड व्हेन टू एग्जिट. ये 4 चीजें आपके पास क्लियर होनी चाहिए. व्हाट टू बाय, ओके, व्हेन टू बाय. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमित सर है ना, 8-21 मूविंग एवरेज यूज करते हैं. सिंपल, 8 और 21 का क्रॉस ओवर होएगा तो मैं बाय करूंगा. 8 और 21 का क्रॉस डाउन होगा तो मैं सेल करूंगा. सिंपल. ये इतना सिंपल है सिस्टम. होता क्या है ना कि एज अ ट्रेडर हमारा काम है सिर्फ ट्रेड करना. दे से कि एज अ ट्रेडर आवर जॉब इज टू जस्ट टू द ट्रेड. बट जस्ट टू द ट्रेड, इसका मतलब ऐसा होता है, वी शुड नॉट एंटिसिपेट एनीथिंग, whether this trade is going to be a losing one, whether I am going to be a winner one. Nobody knows what is going to happen. Okay, but वो क्या होता है ना कि हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस, किरीट भाई ने कहा था कि ये स्टॉक ऐसा है, विशाल भाई ने कहा था कि ऐसा है, इतने बायसेस, ये सब बीच में जब आते हैं ना, तब खिचड़ी पक जाती है. और फिर एक लूजिंग स्ट्रीक जो स्टार्ट होता है, तो जैसा किरीट सर ने कहा, ओवर अ लॉन्ग रन नॉट एवरीबडी कैन बिकम अ ट्रेडर. तो सेम वैसा ही है. जैसे अभिषेक भाई ने कहा कि इन सब चीजों को समझने के लिए 4 साल लग जाते हैं, तो उसको तो ग्रेजुएशन सेरेमनी कहा जाता है ना. इसीलिए कहा जाता है कि व्हेन यू आर इनटू द मार्केट इन इनिशियल डेज, यू शुड नॉट रिस्क मच, यू शुड रिस्क वट एवर यू कैन अफोर्ड. बट होता क्या है ना, हमको इतना एक्साइटमेंट हो जाता है, हमको जैसा इनिशियल लक तो हमेशा ही रहता है, और हमको 1 का 2 बन गया तो हम 2 का 4 बनाने की सोचते हैं, और मार्केट पूरा ले लेता है, इनफैक्ट गर्ज भी चला जाता है. तो इनिशियल डेज ऑफ ट्रेडिंग जब आपका शुरू होता है कि आपको एक एक चीज समझना है. स्टेप बाय स्टेप यू विल लर्न मेनी थिंग्स, and over a period of time you will understand that what kind of personality do you have. Okay, आप किस तरह से हैं, उस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है. ऐसा नहीं है कि मुझे स्विंग ट्रेड
सूट होता है तो आपको भी हो गया, नॉट नेसेसरी बॉस। जो आपको सूट होता है वो कीजिए, लेकिन ये जब सूट होने का चक्कर, ये पोजीशन साइजिंग, ये मनी मैनेजमेंट, इन सबको समझने के लिए जैसा 3-4 साल का पीरियड लगता है ना, तो सबको लगता है। किरीट सर ने कहा ना, यू नीड मिनिमम 5 to 7 years, 5 years एटलीस्ट। तो अब 5 साल है ना, बाजार में सिर्फ टिके रहो, राहुल द्रविड़ बनो बस। क्रीज पे जब लूज बॉल आएगा तभी सिक्स मारो, नहीं तो प्लेट करते रहो ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यू विल अंडरस्टैंड मार्केट सिनारियो, यू विल अंडरस्टैंड मार्केट साइकिल्स, बिकॉज ऐसा नहीं है कि 2020 के बाद जैसा बुल्स में पैसा बनाया अभी कोई नहीं बना सकता वैसा। तो you have a sideways market, you have a bearish phase, you have bullish phase. So you need to learn these phases also. और अगर आप इन सबको क्रॉस कर गए ना, तो वो 3% ऑफ द पीपल ही कर पाते हैं। देन यू आर इन टू अ यू नो स्पेस वेयर प्रोफेशनल आर ट्रेडिंग। जैसे आप लोग हैं ना, 10 साल 20 साल से टिके हुए हैं बाजार में, बिकॉज यू हैव सीन छक्के पंजे, यू हैव सीन बेयर बुल्स मार्केट एवरीथिंग। ओके, तो इस तरह से अगर लोग ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना चालू करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि वो एटलीस्ट पैसा कमाएंगे, पता नहीं पैसा नहीं गवाएंगे, ये बात तो पक्की है। और उसको कहा जाता है कि मनी नॉट लूजिंग इज आल्सो अ मनी विनिंग एक्चुअली। आपको ये समझना पड़ेगा, और जितना जल्दी समझेंगे ना उतना बाजार में टिके रहेंगे। बस इतना ही, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। Definitely, Ravi bhai. And there is a saying that trading is the only profession where despite multiple failures you are given an opportunity to succeed. कोई और प्रोफेशन में आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है सक्सीड करने की, बट ट्रेडिंग इज द ओनली प्रोफेशन। बट यस सर, बट यू हैव टू बट यू हैव टू गो राइट, यू हैव टू गेट यस। योर सेल्फ करेक्टेड, you have to understand and analyze yourself where you are going wrong. So Amit bhai, you wanted to say something, you're raising your hand. See, there is a very simple saying, at least 10,000 hours. I'm again repeating, at least 10,000 hours. 10,000 घंटे ट्रेडिंग करो, एटलीस्ट 1,000 ट्रेड करो। उसके बाद खुद को एनालाइज करो कि मैं कौन हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं इंट्राडे हूँ, स्विंग हूँ, पोजिशनल हूँ, कि जो ट्रेड में लेता हूँ फंस जाता हूँ। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे ना इस चीज के लिए, प्रॉफिटेबल तो भूल जाओ। घर बार बिकने की गारंटी मैं इस टाइम पेपर पे आपको लिख के दे दूंगा। 10,000 घंटे बाजार में टिके रहो, 1,000 ट्रेड करो, 1,000 ट्रेड का ट्रेड जर्नल बना के देखो, हर वीक एनालिसिस करो, हो सकता है तो रोज एनालिसिस कर लो। अपने पास काम क्या है यार? अगर आप ट्रेडर ही बनना है हो, फुल टाइम ट्रेडर बनना है हो, विथ वॉट एवर कैपिटल यू हैव कम, आप उसको एनालाइज करके देखो, भाई मैं गलत कहाँ गया। हम इंसान हैं, हम मिस्टेक्स करेंगे, ठीक है। अगर हमें मिस्टेक्स निकालनी है तो हमें एक एक करके ना मिस्टेक्स ढूंढनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग 20 मिस्टेक्स, अगर मैं हर महीने एक भी मिस्टेक कम करी ना तो मेरा पैसा कम लॉस होगा। मुझे तो पहले ये करना है कि भाई मेरा लॉस कम हो, प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा बात की चीज है, प्रॉफिट के भाड़ में। पहले मेरा लॉस कम होना शुरू हो गया ना, तो मैं एक एक्चुअल एटलीस्ट एक ट्रेडर बनने की कोशिश कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे न्यूट्रल बनना है कि भाई मेरा इस महीने चल प्रॉफिट नहीं आया तो लॉस भी नहीं आया। अगर उस स्टेज पर भी आ गए ना तो शायद आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, वरना आप लकी रहोगे। 20 में से 2 दिन, 18 दिन आपका पैसा बाजार खा के जाएगा। एक दिन 50,000 कमा लिया तो हम खुश हो जाएंगे, कॉलर ऊपर उठा के घूमेंगे, और बाकी 18 दिन जब पैसा जाएगा चुपचाप बैठे रहेंगे। अरे यार आज तो ये रशिया ने वॉर कर दिया, आज फेड की मीटिंग थी, आज फलाना दिख रहा था, आज क्रूड का ये था, आज इसका ये था। ऐसे नहीं होता है। और आप 500 इंस्ट्रूमेंट में काम मत करो, आप एक सिंपल निफ्टी में भी ट्रेड कर लोगे ना, सिंपल निफ्टी में भी कुछ भी सिस्टम बना लो जो आपको पसंद आता है कि भाई 4 दिन का हाई लो है, कल का हाई ब्रेक किया तो मैं बाय करूंगा, कल का लो ब्रेक किया, कुछ भी बनो, वो आपके ऊपर है। उसमें आप सिर्फ लॉस डिफाइन करके चलो कि भाई मुझे अगर इतना लॉस हो मुझे निकलना है। कैपिटल को 50 पार्ट में डिवाइड कर दो कि भाई मैं जाने दे, मेरा हर ट्रेड लॉस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ₹1,00,000 की कैपिटल है, मैं भी यार मेरे पास कोई है ना, पिताजी ने पैसे देके मुझे बाजार में नहीं भेजा था, हमारे पास भी कैपिटल, मैंने 3 बार पूरी कैपिटल वाइप ऑफ करी है। तो जब तक हम वो चीज नहीं समझेंगे ना कि हम बाजार में आए क्यों है, किस पर्पज के लिए आए हैं। देखो लास्ट में सबको पैसा कमाना होता है, लास्ट में सबको ना लैविश हाउस चाहिए होता है, लैविश गाड़ी चाहिए होती है, लैविश हॉलीडेज चाहिए होती है, वो पर्पज नहीं है। आपको अगर बाजार में टिका रहना है तो आपको पहले खुद को डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ,
मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी साइकोलॉजी कहाँ तक बैठ सकती है। और उससे इम्पोर्टेंट है कि भाई अगर लॉस आता है और मेरे कोई इमोशन नहीं आते, तो मैं बटन दबा के एग्जिट करके लॉस बुक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। जिस दिन आप ये सारी चीजें समझोगे ना, और एटलीस्ट 10,000 घंटे, 10,000 दिन की बात नहीं कर रहा। अमित अमित जी, आपकी आवाज ना थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ विशाल, मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई 10,000 घंटे, 10,000 आवर्स एटलीस्ट यू नीड टू स्पेंड ऑन वट एवर यू आर ट्रेडिंग। चेक इट। पेपर ट्रेड करोगे कोई फायदा नहीं है। आप रिलायंस के एक शेयर से ट्रेड करके देख लो ना। आप रिलायंस का एक शेयर भी ट्रेड करोगे तो एक्चुअल मनी तो गया है ना आपका। उसमें भले 50 रुपए का लॉस है, 100 रुपए का लॉस है, बट जब तक एक्चुअल पैसा नहीं जाएगा आपका, है ना, वो कागज में ट्रेड करके बैक टेस्टिंग करके बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाएंगे। मैंने आज तक कभी कुछ बैक टेस्टिंग नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो गए। मैंने जो भी किया ना, पैसा गवा के ही सीखा है कि भाई ये चीज मेरे लिए काम नहीं करती, ये चीज मेरे लिए काम नहीं करती। फिर मैंने फाइनली जब निकालना ना कि भाई ये चीज अपने लिए काम करती है, मैं इसी को फॉलो करूंगा आंख बंद करके। प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, आई डोंट केयर। एंड आई एम नेवर श्योर कि मेरा इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, पर मुझे उस चीज में एक गारंटी पक्का होता है कि भाई मेरा लॉस तो पक्का ट्रिगर हो। राइट। हेलो अभिषेक, एक मिनट कौशिक, आई हैव सेंट यू अ रिक्वेस्ट। Abhishek, I already accepted your request. Kamal bhai have gone to a speaker mode. चलो, yes, great sir. Please. Just one thing, आपने जो 10,000 hours का किया, that's a fantastic example. There's a book by Malcolm Gladwell. तो Malcolm Gladwell बोलता है किसी भी फील्ड में, whether it is sports, whether whatever the field may be, to master the art you need minimum 10,000 hours, which is a known fact. I can't get the name of the book, where he's also mentioned about, he's written a separate section of in one of the books where he's mentioned about Victor Niederhofer, one of the greatest trader, basically an option seller who went belly up thrice. So I fully agree with the thing. I think killer trader been wanting to add. He's a good trader. Let him add something to it. Sir, Over to you, Killer. I'll add to a point. Okay, Abhishek, एक second रुकना. Sir, there was a saying which I used to use in my workshops. Bruce Lee का एक बहुत अच्छा statement है. I don't fear the man who have practiced 10,000 kicks, but I fear the man who have practiced one kick 10,000 times. Absolutely. That's a very famous quote. Very true. Yes. That. Abhishek, go ahead. Definitely, Amit bhai. So, all of you have covered wonderful points. A few from my side. First thing is that before you decide what you want from the markets, understand what kind of a person you are. Because trading is not like any other job. There are a lot of extracurricular things that are attached to it. The first and the foremost given fact is that it will take years for a person to succeed. Now, you need to decide on your financial capital, your emotional capital, your psychological capital, and your circumstances, whether you can be in the field. Once you fix that, based on that, you have to choose a time frame in which you can trade. Not everyone can become a successful trader in the long run, but many can become a successful market participant in the long run. Please don't. I see people who tell me that I have a full time job and I want to trade intraday bank nifty and nifty. Is that possible for you to stare at two screens? एक side आप आपका office का काम करोगे and on the second side you have to take trades on an intraday basis. Is that possible or practical? Absolutely not. So that is something you have to decide for yourself based on your circumstances. How can I create the best possible situation for me where I have a chance, or where I even have a slight chance to become successful? That is the first point. Second point that I would like to say is that as a trader, there are no free lunches for you. For every benefit that you have in following a strategy or following a method or following a style of trading, there is also a downside to it. We have to make our bets and we have to be comfortable with it, because we can't just have this perception that, all right, if I am a breakout trader and I want to trade breakouts, multi-month or multi-year breakouts will give fantastic returns. But as a breakout trader, I should also be mentally prepared that experiencing false breakouts are a part of the job. Or if I want to be a pullback trader, just an example, then the upside to it is a lower risk and a better and a higher reward there. But at the same time, the best performing stocks hardly give a pullback in their best phases.
So there will be a lot of missed opportunities there. Again, you have to make your bed with it. Similarly, like Kirit sir and Kamal sir were saying about target booking versus letting your profits run. Again, there you have to have a realistic understanding. If you are a day trader and you want to make a huge profit, then is it something that is possible? Do you think a big move can occur in a single day itself? Then you would need to move on to a slighter, larger time frame. But the other side to it is holding your positions overnight there. So there are a lot of factors, there are multiple factors at play here. We have to choose some as an individual based on what we feel are comfortable with, and then yeah, move ahead with it, practice and try to stay consistent. And and to be honest, what we think we are comfortable with, until it goes sideways, we really don't know if we are comfortable with it. Someone may think I am fine with 20% drawdown or 15% drawdown. जब अकाउंट 5% ड्रॉडाउन में रहेगा ना, then itself that person will start losing, having sleepless nights over that. So to understand all this itself, it will take quite some time, and then from there comes the point of profitability or slowly moving into profitability. And the most important point, this is something I personally tell myself every morning before I sit to trade, is that I have the power to damage myself, to undo the progress of weeks and even months in a single day if I don't have a stable mind when I sit and punch orders in the market. This is something I literally tell myself every day. So I have to do the best to control my risk for the day, because as traders it is definitely possible for you to blow up months of profit in one single day, or even a good size of your account. When we have the risk of doing such a large damage to ourselves, we have to try and be uh, be as in focus as we can. And that is the most important thing in the markets, having a stable mind and trying to stick to one or a few types of trading styles or methods that you think are good for you. Kaushik, I have sent you a request. If you can accept that request. Yeah, Abhishek, go ahead. Second And Abhishek. Yeah. Both Abhisheks. Yeah, okay. See, okay, one thing, Mhm. what I have to say, another thing is that, like, see, बहुत सारा जो चीज़ है ना, it is mostly about psychology only. See, I have backtested a lot of systems actually, and what I have seen is कि ना, see, आप कोई भी सिस्टम आप उसको बना लो, आपका सिस्टम मोर और लेस चल जाता है, ठीक है, सारे सिस्टम चल जाते हैं, बट अगेन आप उसको उस सिस्टम के ऊपर ना, एक चीज जो मैंने देखा है, जो बात हो रही थी मतलब ड्रॉडाउन की, हार्डली एनीबडी कैन, मतलब अगर मानो 100 ट्रेडर हैं, 90% ऑफ ट्रेडर्स पहला ड्रॉडाउन आएगा भाग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन वो नहीं होता है, उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई हम पहला ट्रेड लेंगे, वो हमको देगा अच्छा खासा प्रॉफिट, हम एक आईफोन लेंगे, आईफोन लेने के बाद चलो कोई नहीं, एक और प्रॉफिट आएगा तो हम लोग, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन क्या है, एकदम आपका रिजिड है, ठीक है, और आपका जो रूल है एकदम तो फ्लेक्सिबल है, क्यों, आज आज मार्केट पर जा रहा है। अभिषेक भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बट जस्ट व्हाट आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं, पीपल हैव अ डिफाइंड आउटकम एंड डिफाइंड रिजल्ट, और उसके बेसिस के ऊपर लोग ट्रेड करते हैं, दे सेट देयर एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली, यस, लाइक किरीट भाई ऑलवेज सेज, बाजार को आपको पैसा चुकाना है क्या? सो नो, पीपल हाँ, पीपल विल हैव अ एक्सपेक्टेशन कि ये ट्रेड से मेरे को 10,000 कमाने हैं, ये ट्रेड से मुझे लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने हैं, 1 करोड़ कमाने हैं. नो वन विल थिंक अबाउट, मोस्ट ऑफ देम, आई वोंट से नो वन, मोस्ट ऑफ देम विल नॉट थिंक अबाउट ये ट्रेड में मेरे को मैं इतना ही गवा सकता हूँ, सी इससे ज्यादा मैं, मेरे. सी definitely. मैं See, एक चीज, हाँ, like Abhish, हाँ, मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आप मतलब इफ यू हैव, आई मीन देयर इज अ वेरी गुड बुक बाय मार्क डगलस, ठीक है, ट्रेडिंग इन दिस जोन, तो उसी का स्टेटमेंट है कि एक्चुअली क्या है कि हमारा जो मतलब जो हमारा मार्केट है उसके हिसाब से आवर एक्सपेक्टेशंस शुड बी फ्लेक्सिबल एंड आवर रूल्स शुड बी रिजिड, होता है इसका उल्टा है, ठीक है, हमारे एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं रिजिड और हमारे रूल्स हो जाते हैं एकदम फ्लेक्सिबल, ठीक है, तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव सीन, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई टॉक टू, एंड इवन आई हैव फेस्ड दैट प्रॉब्लम, तो ऐसा 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 नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेकिंग सो मेनी ट्रेड्स, अंडरस्टैंडिंग कि हाँ कि ये आपको नहीं करना चाहिए,
तो वही मैं कह कि आप कोई भी सिस्टम लो, आपके पास आपका सिस्टम आप उसको निकाल दो। अभिषेक जी नॉट ऑडिबल एट ऑल। आपकी बिल्कुल वॉइस ब्रेक हो रही है। सो one गाइस, point one point that अभिषेक भाई said about an example कि मुझे कल ट्रेड करना है और प्रॉफिट से नया आईफोन खरीदना है, एंड आई कैन से इट फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं भी उसी माइंडसेट से था, एंड द डे आई एक्चुअली मेड enough money to buy an iPhone in a single trading session, उस दिन I did not even have the heart to spend that money because it took so much of hard work. And that is what it will take for every person whoever has the perceptions that they can buy X item or any luxury goods from their 1 day's trading or 2 days trading. एब्सोल्युटली अभिषेक भाई, एब्सोल्युटली। आई गेट लॉट ऑफ क्वेरीज कि सर हमने सोचा था कि ये कर लेंगे, हमने अपना पर्सनल लोन लेके ट्रेड किया, हमने ट्रेडिंग टिप्स के ऊपर काम किया, हमने ये किया, हमने वो किया, एंड इवेंचुअली दे एंड अप लूजिंग बिकॉज दे हैव अ एक्सपेक्टेशन राइट कि मेरे को, मैं बाजार से पैसा, ये पैसा कमाऊंगा और वो पैसे का मैं ये करूंगा। तो पैसा Definitely, गवाऊंगा तो की तो बात करते ही नहीं है। दे डोंट इवन think of the probability of losing money. So market is all about probability of winning and losing. It could be that out of 10 trades you have 10 100% losing probability as well. So people don't think. definitely, That is the major problem. What and if someone can overcome that problem, if some and how that problem can be overcome is only and only by testing your back testing your system time and again, getting discipline in your trading, sizing your position properly, and not expecting anything out of the markets. Let your system do what it is doing. definitely. See, if someone thinks that they can make money in the markets consistently, going by someone else's tips, even if we go by assuming the fact that the person giving the tips is actually giving good trade ideas, all right, trade ideas that person can give, but who can transfer their execution skills to you? Nobody can. That trader himself has to develop their own execution skills there. Vishal, Yes, Kirit. I just wanted to add, I think Killer Trader mentioned about iPhone example. My personal experience has been, which I think I should share. Whenever I take a trade, moment I get the feeling that this trade is going to make tons and tons of money, या थोड़ा बहुत पैसा बनाएगा, majority of the time वो पलट के साला stop loss hit करता है. Whenever I enter a trade, and when I'm least expecting anything out of it, those are few of those trades actually turn out to do well. So I think, and second problem क्या होता है, till the time you have a 10, 20, 25 lakh up to 30 lakh account, ठीक है. Problem will start the moment you run into crores, because I have seen many such issues coming up. Just supposing you're handling a 5 crore account, and it's quite likely, on a good day, probably at one point of time, let's say you're making 20 lakhs. Moment you see the figure 20 lakh, I can bet hands down on it, 98.9% of the time आप वो 20 लाख से carried away हो जाओगे and you will close the trade. But the true trick lies, when you can let it actually run. Or even on a smaller capital, if you have made sizable money, आपको लगता नहीं यार बहुत बढ़ा दिया है, अब बाजार टाइम हो जाएगा मैं काट देता हूँ, और Sir, बहुत टाइम वही चीज. हाँ, Sir, yes, and, yes. sir, and apart from that, one issue that I faced, I'm not sure how many else face that issue, is that let us say that I have a trade running, and the MTM that is still the position that I have is showing a very good amount of profit. The moment it starts going below it, I used to get a bit uncomfortable. I always focused on getting the highest possible profit out of a single trade. That is when it took me quite some time to get over the fact that it is not simply possible that all I can do is trail my stops, and wherever it hits, I would need to exit my trade and be happy with whatever I made in that trade. It is not simply possible to realize the highest MTM that shows on the screen in live markets. And that even used to trigger random trading inside me, which even took some more time for me to get over that. I can actually correlate. I have done similar expectations number of times M to M देखने के बाद में
एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है और वो सारा का सारा बाजार को वापस दिया जाता है। और यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप चाहे कोई भी बाजार में चले जाओ, कोई भी लोकल मार्केट में चले जाओ, आपकी किराना स्टोर पे चले जाओ, वो जो दुकानदार है वो अपना गल्ला जो है, गल्ला इज फॉर हिम इज कैश फ्लो। वो अपना गल्ला जो है एंड ऑफ द डे गिनता है। वो दिन में हर सौदे के बाद में, हर कस्टमर के आने के बाद में वो अपना गल्ला खोल के ये नहीं गिनेगा कि मेरे पास में अभी 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया या मेरे पास में 5,000 का प्रॉफिट हो गया है। Why? And I have seen, given that on the trading, I have been heading a trading desk in my past. I have seen most of the traders who were losing, traders used to make this mistake every 5 minutes, every 10 minutes, after every 5 minute 2 rupee movement, every tick they will do a alt F6. Why you have to do that? हर एक मिनट में आप गल्ला, भैया आप व्यापार करो ना यार। आप गल्ला गिनते रहोगे तो आपको गल्ला गिनने के लिए आपके पास मुनीम बैठा हुआ है। That alt F6 is giving you, end of the day it will give you the mark to market. You need not to watch it every now and then. The moment you keep watching it every now and then, you are gonna get psychologically impacted, and that will impact the outcome of your trade. Yes, Amit bhai. See, I make a plan, execute it to the T. स्टॉप लॉस आएगा काट देने का। जो मुझे लगता है कि भाई पॉसिबल लगता है कि यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है, आई एग्जिट माई पोजीशन। बिकॉज यू पीपल आर लाइव विथ मी ऑन व्हाट्सएप, आई ऑलवेज शो यू पोजीशंस कि भाई मैं काट के निकल गया। अब वहाँ रेजिस्टेंस आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, जब तक मेरा लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। सो द सिंपल थिंग इज प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान एंड डोंट गो बियॉन्ड इट। कि भाई ये जो भी आपको लगता है, कोई भी आप सिस्टम फॉलो करो। सिस्टम कुछ भी नहीं, सिस्टम आप कुछ भी बना लो, एक मूविंग एवरेज का सिस्टम बना लो, एक बॉलिंजर का बना लो, आरएसआई का बना लो, मैकडी का बना लो, एडीएक्स का कुछ भी बना लो। अरे सिंपल प्राइस एक्शन का बना लो, इस प्राइस के ऊपर गया तो मुझे खरीदना है, इस प्राइस के नीचे आएगा तो मैं काट के निकल जाऊंगा। सिस्टम कुछ भी नहीं है, सिस्टम जो आपको बनाना है बनाओ। और आप बैक टेस्टिंग पे विश्वास करोगे, सी आई डोंट ट्रस्ट बैक टेस्टिंग, वेरी सिंपली स्पीकिंग, क्योंकि मैं 20 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 18 साल हो गए। तो मैं ना वो सारे ट्रेड मार के देखता हूँ कि भाई इफ आई हैव टू टेस्ट समथिंग न्यू, आई विल पुट माई ट्रेड ऑन एंड सी कि भाई इसमें रिजल्ट क्या था। आई विल स्टार्ट विद 100 शेयर्स। मुझे कोई कंपल्सन नहीं है कि भाई उसमें मुझे पूरा कैपिटल एक साथ ही डाल के देखना है, क्योंकि उसने पास्ट में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। भाई लास्ट में मुझे है ना, मेरा घर बार है ना ट्रेडिंग से चलाना है। लास्ट में मैं घर पे कितना पैसा लेके जाता हूँ वो मैटर करता है, एमटीएम पे क्या आया वो मैटर नहीं करता। लास्ट में जो ब्रोकर के अकाउंट में वो मैटर नहीं करता, लास्ट में उससे निकाल के मैं अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा लेके गया और उस चीज का मैंने क्या किया। या अभिषेक? या मैं कह रहा हूँ ना, एक्चुअली सी व्हाट हैपेंस, आई होप आई एम ऑडिबल राइट नाउ, राइट? Yeah, absolutely audible now. So see what I was saying earlier was कि like when you enter the market you should have a fixed rules, ठीक है? वो रूल्स आपके फिक्स होने चाहिए, बट आपका एक्सपेक्टेशंस जो है मतलब कि दो शुड बी फ्लेक्सिबल, ठीक है? बट वो उल्टा ही करते हैं। वही मैं आपको मतलब कि कह रहा था कि देयर इज अ बुक कॉल्ड, उसका नाम है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। ही सेज वेरी सिंपली दैट लाइक जो मैंने बोला कि आपका जो रूल्स है शुड बी एकदम रिजिड, एक्सपेक्टेशंस फ्लेक्सिबल। हम लोग मार्केट में उसका उल्टा कर रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम डू द ऑपोजिट थिंग, ठीक है? कि आपको ये चीज लगता है कि अच्छा ठीक है, मेरा सिस्टम मेरे को पैसा दे दिया 1,000 रुपए, चलो ठीक है भाग जाओ, ठीक है? बट वो आपके सिस्टम का रूल नहीं है, ठीक है? आपको अपना सिस्टम टू द टी फॉलो करना है, ठीक है? वही वो चीज है, उसके रूल को फॉलो करना है, ठीक है? कितना पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है वो आप बाद में देख लो, ठीक है? और वही चीज क्या है ना, मैंने देखा है हैम्पर करती है एज अ ट्रेडर आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप वो एक्सपेक्टेशन ही आपकी वैसी है। तो जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे तब तक वो बात नहीं बनने वाली है। और दूसरी बात एक और जो मैं देखता हूँ कि मोस्ट पीपल हु कम इनटू द मार्केट इवन एज ट्रेडर्स, ठीक है, ट्रीट इट लाइक लाइक अ विंडफॉल गेन, ठीक है? कि भाई विंडफॉल गेन आएगा, हम निकल जाएंगे 6 महीने, चार महीने बाद। देर आर वेरी फ्यू पीपल हु थिंक दैट दिस इज लाइक एक्चुअली अ प्रोफेशन और लाइक अ बिजनेस। वो सोच नहीं है, वो सोच बहुत लेट में आती है, ठीक है? बिकॉज सी आई डोंट नो लाइक हाउ मेनी ऑफ like you might be acquainted of I mean say with this statement that when you do a business it takes about 2-3 years to break even, ठीक है? वो 3 साल के बाद जाके एक्चुअली पैसा आता है,
ठीक है, वो ट्रेडिंग भी बिजनेस ही है अल्टीमेटली। जब आप उसको भरने जाते हो इनकम में आपके एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपका जो भी आपका पीएनएल होता है एटलीस्ट फ्रॉम एफएनओ सेक्शन, दैट इज अ बिजनेस। अभिषेक भाई, देर इज अ सेइंग दैट, आपकी बिल्कुल बात सही है, यू हैव टू गिव 1000 days टू एनी न्यू बिजनेस. If your business does not succeed in first 1000 days, then there is no point continuing the business. So विशाल, 1000 वो मारवाड़ी की कहावत है हमारे कि भाई 1000 दिन तक अगर तुम्हारा बिजनेस सस्टेन हो गया ना, तो शायद तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे. 1000 दिन तक तो बिजनेस बिल्कुल सस्टेन करो. मतलब बिल्कुल अपने अगर 250 दिन अपन मोटा मोटी ट्रेडिंग के पकड़ते, 250 days of trading that we take into account. So it almost 4 years of time that you need to give and see whether in a 4 years period you are profitable or not. Yeah, Abhishek, go ahead. हाँ, वो एक और चीज है। और सेकंड व्हाट आई आल्सो थिंक कि ना कि आजकल जो नया जो फैड है कि देखो देयर आर सो मेनी पीपल ऑन ट्विटर, राइट? इवन आई एम देयर, इवन लाइक सो मेनी पीपल, एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट सिस्टम। ठीक है, पीपल हु आर कमिंग आर लुकिंग एट समबडी, अच्छा इनका तो चलता है, उसका भी चलता है, मैं इसका कंबाइन करके इसको बना लेता हूँ। वो उससे नहीं होता है। ठीक है, यू हैव टू डू समथिंग योर सेल्फ, पागलों की तरह। सी मेरे लिए तो मुझे वही वर्क किया। ठीक है, बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मेरे से कैंडलस्टिक नहीं होता था। ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आता था। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। ठीक है, मेरे को कोडिंग आती है, तो मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो मेरे को वो थोड़ा एम्बिग्यूटी लग रहा था, मेरे से नहीं हो रहा था। देखो बाकी लोग बहुत अच्छा कर पाते, मेरे से नहीं हो रहा था। ठीक है, वो मेरे को सूट नहीं कर रहा था। ठीक है, सो आई हैड टू फाइंड अ स्टडी जो मेरे एपेटाइट या जो मतलब कि जो मेरे स्टाइल के लिए मेरे को सही लगे। ठीक है, आई फाउंड इट आउट, मतलब कि बहुत टाइम बाद, एंड इट हेल्प मी। सो वही मैं कह रहा हूँ, आप किसी को जाके ब्लाइंडली कॉपी मत करो। आप पहले अपना बिहेवियर देखो, अपना नेचर देखो, क्या आपको सूट करता है। ठीक है, देयर वुड बी मेनी पीपल जिनके लिए एफएनओ सूट नहीं करता होगा, बट वो इसलिए करते हैं क्योंकि एफएनओ में पैसा ज्यादा है, कॉल पुट का ऑप्शन ज्यादा है। अगर आपको सूट नहीं करता है, मत करो। अपना जो बिहेवियर है ना, वो आप देखो कि आपके लिए अच्छा क्या है। ठीक है, बिकॉज सी ट्रेडिंग अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक करना है, इट शुड मेक यू कंफर्टेबल। इट शुड नॉट मेक यू कि आप सीट के एज पे बैठे हो, रोज आप स्क्रीन ताड़ते रहते हो, कुछ होता नहीं है, एंड ऑफ द डे आपका पीएनएल इज ऑलवेज इन रेड। उससे क्या फायदा होगा? ठीक है, आप आराम से आपका जो भी ट्रेडिंग है, इट शुड नॉट बी लाइक अ रोलर कोस्टर। इट शुड बी यस कि आई एम कंफर्टेबल विद वट एवर इज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन। एंड जब वो चीज आएगी तभी यू कैन मेक इट एज अ ट्रेडर फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अभिषेक भाई. किरीट भाई, योर क्लोजिंग कमेंट्स. डॉक्टर साहब, प्रीति इज, आई थिंक उनको देयर सम कनेक्टिविटी इश्यूज एट हर एंड. Okay, I think coming back to the topic, can everyone become a successful trader in the long run? My answer still remains no, for reasons already explained. But that doesn't mean that you should give up hope, because it's not about being intelligent or about even an average person, with basic stuff can still do well. I have seen such cases. So there is nothing great about it. What you need to do is, I repeat once again, you need to be mentally conditioned that you'll get knocked down too often, and you will go through tough phases. Even if you are a good trader, and you need to have a edge. You need to have a defined set of rules. You need to know your uncle point before you take a trade. Uncle point is nothing but the pain point or the risk that you're going to take, because this business is only about risk. Let your profits run, cut your losses, then you may have a chance in inverted commas. Thank you, guys. डॉक्टर साहब, आपके क्लोजिंग कमेंट्स. I think Dr. Saab is traveling, so उनका कुछ connectivity issue भी हो सकता है. My closing comment is only this thing. First of all, understand who you are, what you want to do in your life. ट्रेडिंग को फुल टाइम प्रोफेशन बनाया तो उसको पैशन रख के चलना पड़ेगा आपको कि भाई मुझे तो यही करना है, मुझे इसी फील्ड में टिका रहना है. उस फील्ड में टिके रहने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और इतना मेहनत तो अपनी जगह है, अपना खुद का कुछ ऐसा डेवलप करके आओ कि ये चीज मेरे लिए काम करती है. भले 30% काम करे, 40% काम करे, मुझे तो इसी के चार्ज रहना, इसी सिस्टम के साथ रहना. जो भी आप सिस्टम बनाओ, XYZ कोई भी इंडिकेटर उठा लो, कुछ भी उठा लो, कुछ भी कर लो, पर उसके साथ स्टिक ऑन रहो, तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन जाओगे. लॉन्ग टर्म में
6 महीने पैसा कमा लिया और 1 महीने में देखा गया ना तो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नहीं है। लास्ट में जब तक वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आके आप अपने पे कंज्यूम नहीं करोगे, चाहे प्रॉपर्टी खरीदो, चाहे ज्वेलरी खरीदो, चाहे बैंक में एफडी बना लो, डजंट मेक्स अ डिफरेंस। सो कुछ भी करो, वो पैसा जब तक वापस अपना लगाया हुआ पैसा, फॉर एग्जाम्पल आप लाख रुपया भी लेके आए, लाख का वापस 10,000 भी घर पे लेके और 10,000 घर पे खर्चा किया ना, दैट इज मोर देन इनफ। यू डोंट नीड टू बी इंट्राडे ट्रेडर, यू डोंट नीड टू बी अ स्विंग ट्रेडर। आप इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा कमा सकते हो, और इन्वेस्टमेंट ही करना है तो क्यों दिमाग लगाने का, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, 10 साल का जो रिटर्न आएगा 10 साल बाद देखना। तो जरूरी नहीं कि आप मार्केट में 24 घंटे ट्रेडिंग करो, 24 घंटे हमारी स्पेसेस सुनो, किसी का लेवल पढ़ो, कुछ मत करो। सिंपल जाके निफ्टी का बीज खरीद लो, बैंक निफ्टी का बीज खरीद लो, वो भी तो एक तरीका है ना मार्केट में पार्टिसिपेशन करने का। नहीं समझ में आता, लगता है लॉस मेकिंग ट्रेडर है तो किसी और को पैसा दे दो, वो 1% चार्ज करेगा। यार 1% तो हक बनता है ना उसका भी। हम घर खरीदने जाते हैं तो 2% तो ब्रोकर ले लेता है, तो ये पकड़ लो कि भाई ब्रोकर को दे दिया पैसा 2%। उसमें से आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर बैठे हो तो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने दो एज ए इन्वेस्टर। आपने अगर किसी कंपनी की रिसर्च करी है, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप पर्सनली जाके इन्वेस्ट कर दो। थर्ड वे, वरना खुद का कुछ ऐसा बनाओ जो आपके लिए काम करे। अभिषेक हो सकता है पॉइंटेड फिंगर यूज करता है, मैं कैंडल स्टिक यूज करता हूँ, किट सर अपना सिस्टम यूज करते हैं। वी ऑल आर प्रॉफिटेबल बट इन डिफरेंट मैनर्स ऑल टुगेदर। एंड वी, मैं किट सर को नहीं समझता कि मैं सर, मुझे नहीं समझ में आता आपका। किट सर मुझे बोलते हैं तेरा काम नहीं करता, तो हमारा आपस में फाइट वो चलता रहेगा। दैट इज नॉट द पॉइंट। यू नीड टू डेवलप समथिंग फॉर योर सेल्फ विच सूट्स यू। इफ यू वांट टू बी इन दिस मार्केट फॉर से नेक्स्ट 30 years, नॉट 3 years और 5 years, इफ यू वांट टू बी इन दिस मार्केट फॉर नेक्स्ट 30 years, ये सोच के चलो कि भाई मेरी तो जिंदगी इससे चलेगी। जब तक वो सोच के नहीं आओगे ना, खुद के लिए कुछ नहीं करोगे। और ये पकड़ लेना, होमवर्क सबसे जरूरी है। आपको अगर कल सुबह ट्रेड करना है तो आपको ये सोचना है कि भाई डाउ ने क्या किया छोड़ दो। अगर आपको डाउ भी फॉलो करना है डाउ फॉलो करो, आपको एजिक्स फॉलो करना है एजिक्स फॉलो करो, और उसके बाद आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए कि सुबह मुझे जाके क्या करना है। अगर मेरे कंडीशन आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। हो सकता है 20 दिन में से 15 दिन आपको ट्रेड भी ना मिले, वो 15 दिन पेशेंटली आप बाहर बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते, कि कंपल्सिव खुजली है मुझे, मतलब जो इचिंग होता है, मुझे तो रोज ही ट्रेड करना है, नहीं गया तो नहीं गया, मुझे तो ट्रेड ही करना है, सिस्टम में नहीं आया तो भी मुझे ट्रेड करना है। ये करना शुरू कर दोगे ना, मैं इस टाइम पेपर पे लिख के दे दूंगा भाई पैसा गवाओगे। तो अपना जो सिस्टम बना उसके साथ स्टिक रहो। मेरा रूल फॉलो, रूल बना लो, कागज पे रूल बना लो, जहां पर भी आप ट्रेडिंग करते हो कुछ भी करते हो वहां पे ना उसको चिपका दो और पूरे दिन वही पढ़ते रहो। जैसे मंदिर में वो हनुमान जी के मंदिर जाओगे ना तो हनुमान चालीसा लिखी होती है, तो ये पकड़ लो कि भाई वो मेरी हनुमान चालीसा है, मुझे वही पढ़ के वही फॉलो करना है। कुछ नहीं समझ में आया, डब्बा बंद करो, और हम लैपटॉप सिस्टम जो भी आप यूज करते हो बंद करो। घर पर हो घर पर, ऑफिस में ऑफिस में, बंद करके कुछ टीवी देख लो, कोई साउथ इंडियन मूवी देख लो, इतनी अच्छी चीजें है जिंदगी में यार। अभी तो आईपीएल चलोगे, आईपीएल देख लो। जरूरी थोड़ी है रोज ट्रेड करना है, हर ट्रेड में पैसा नहीं बनेगा। आपके अगर सिस्टम में आपके रूल्स में फिट नहीं होता है, ट्रेड मत करो। पैसा बचाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस मार्केट में, पैसा गंवाना सबसे आसान काम है। पैसा गंवाने का तरीका हम में से कोई नहीं सिखा सकता, वो आपको खुद को हमसे बेस्ट आता है। पर पैसा कमाने के लिए आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे खुद को। दैट्स इट फ्रॉम विशाल। Thanks, Amit. Thanks, everyone. Just closing comments from my side. See, trading is not a part-time profession. Trading is a full-time profession. If you can give and dedicate trading your full time into trading, तभी आप trading के अंदर seriously आइए। 90% of the traders, people who I see, कोई नौकरी पे बैठे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, साथ साथ में वो ट्रेडिंग करते हैं। तो जो लूज भी इसीलिए होते हैं बिकॉज दे आर नॉट फोकस्ड ऑन ट्रेडिंग ऑन द मार्केट। वो अपने ट्रेड के ऊपर फोकस नहीं है। दे कम टू द मार्केट जस्ट फॉर विद द एक्सपेक्टेशन दैट दे हैव टू अर्न क्विक बक। दैट इज नॉट गोना हैपन इन द मार्केट। यू हैव टू हैव, ये व्यापार है, इट्स नॉट अ स्पेकुलेशन, इट्स नॉट अ सट्टा कि यहाँ पे आए और पैसा लगाए और रातों रात दुगना चौगना चार गुना हो गया। दिस इज नॉट द प्लेस वे इफ यू योर एक्सपेक्टेशन इज समथिंग लाइक दिस। ये 2% का धंधा है बाजार के अंदर। हिस्टोरिकली indexes have given CAGR of anywhere between 18 to 20% return. If you are comfortable with that kind of return, then you should enter the market. Don't expect that markets will give you 5 times, 10 times, or 2 times return. If you get those returns, you are lucky enough, you will get those kind of returns.
But if you come with that kind of expectation, be prepared to lose 100% of your capital if you are not managing your risk properly. So the key and to be a disciplined trader is have a trade plan, manage your risk properly, and don't set expectations right for the profit. बाजार को आपको पैसा नहीं चुकाना है. आपके पास में जो पैसा है वो सारा का सारा बाजार हड़प के लेके चला जा सकता है if you are not disciplined. So closing comments are this is all I have to say. Wish you all the way, very best for a very. विशाल एक मिनट, कौशिक आया है. Let कौशिक speak for 2-5 minutes. Fair enough, makes sense. Kaushik, go ahead, please. Because Kaushik is a very good trader. Kaushik, go ahead, please. Hi everyone. Yeah, Kaushik, you are audible. Go ahead. I have just joined. मेरा तब से actually spaces crash कर रहा था. I don't know topic क्या चल रहा है, मतलब view के बारे में चल रहा है या क्या चल रहा है. The topic is simple. What is highlighted? Can one become a successful trader in a long term? Profitable, successful trader. Simple answer is yes. अब बाकी सब तो आई होप कि डिस्कस हो गया होगा. व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज डिसिप्लिन एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी मेनी लूजिंग ईयर्स. मेरे हिसाब से मिनिमम 5 साल तो लगेगा पूरा जर्नी को ब्रेक इवन तक आने के लिए. स्टार्टिंग में सब लोग मेजॉरिटी लूज करेंगे पैसा. बिगिनर्स लक हो जाता है पर मेजॉरिटी पैसा लूज करेंगे. कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं जो 1-2 साल में फटाफट उनकी गाड़ी ट्रैक पे आ जाती है. बट मेजॉरिटी आर गोइंग टू लूज मनी इन द स्टार्टिंग ईयर्स. बट अगर फिर मिस्टेक्स को समझ के, अगर मिस्टेक्स को सही तरीके से रेक्टिफाई करके डिसिप्लिन अप्रोच लगाएं तो मोस्ट प्रॉब्ली 5 इयर्स के बाद में फिर चीज़ें अपने आप सेट राइट होना स्टार्ट हो जाती हैं. Discipline, according to me, is the most important factor in all that, in this entire journey. But what is discipline? Discipline का मतलब क्या? Discipline भाई मतलब बात यह है कि स्टार्टिंग में तो चीजें फिगर आउट करनी पड़ती हैं कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीख लेने से नहीं हो जाता. मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ता है, पोजीशन साइजिंग सीखनी पड़ती है. तो ये सब सीखना पड़ता है. पर फिर एक बार सब चीजें पता चल जाने के बाद में कितने क्या बोलते हैं रिगरसली उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं. जब पता सामने दिख रहा है कि ट्रेड नहीं चल रहा तो बायस को छोड़ के ट्रेड एग्जिट करना, दैट इज डिसिप्लिन. जब अगर एक आध ट्रेड फेल हो जाए फिर भी अगला ट्रेड लेना जो स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज डिसिप्लिन. सो यही सब चीजें हैं, सिंपल थिंग्स. ज़्यादा इमोशनल ना होना एंड एक प्रोसेस को फॉलो करना कि जो ट्रेड आ रहे हैं वो लेंगे, जो ट्रेड नहीं चल रहे उनको कट करेंगे. यही सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें. कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है पर इजी भी नहीं है. Yeah, Abhishek, you have something to say? Yeah, yes, Amit, sir. The thing that After Abhishek, after you, Kapil is also over here. So after you, I'll hand it over to Kapil. Sure. After Kapil will open the forum. You can send me a request. Post Kapil's comment. We'll open this forum so you can send me a request post that. हेलो अमित भाई, क्या हाल चाल? कपिल, एक मिनट, अभिषेक का कोई क्वेश्चन था. पूरा इंडिया घूम लिया ना? मैं हाँ, अभी वेस्टर्न तो हो गया था. चल ठीक है, अच्छा किया यार. Yeah, Abhishek, go ahead. Yeah, so I'd like to add a couple of points to what Kaushik was saying. The rules that a trader has to follow, a lot of people know that, but in spite of that, many are still not able to follow those rules. Everyone, including everyone who's in the markets for at least some time, know that position sizing should be kept in control.
But how do they reach from point A, where they are not able to control their position sizing, to point B, where they can stick with a particular position sizing, irrespective of what is happening, irrespective of the previous trades being profitable or loss, and irrespective of how a trader is feeling. That is what determines if a trader is going to be in the markets, keeping aside profitability, be in the markets in the long run, or if they are going to be thrown out of the markets in a very short span of time. And again, for that, only an individual themselves can have the best answer for that, because I know myself the best, you know yourself the best, I don't know you the best. So in no one else can answer that for you. We can guide, we can tell you what book to read. If you read 5 to 6 books, you may get one or two actionable points on that, that you can relate to your own problems, own psychological issues or barriers that you have in the markets, and act upon that. But again, the groundwork, the legwork is something that the trader themselves should do, and it is literally going down a rabbit hole, and expecting that there is a light on the other side of the tunnel and trying to get there. Absolutely fair point. See, my style might be different. Kate's style might be different. Dr. Saab's style might be different. Kapil's style might be different. Kaushik's style might be different. You need to analyze. Okay, I'm ready with the 10,000 rupees loss. You are a profitable trader. Now I'm happy with the 20,000 rupees risk. So it's only you who can decide what to do, what not to do. You can read a number of books, but at the end of the day, when you are executing a trade, it's up to you how you decide what to do. We can only guide you. At the end of the day, I'm not sitting at your desk and telling you what do this, what do this, do that. It's not up to us. It's up to you. So first of all, you need to analyze who you are as a personality. I'm an intraday, swing, positional, whatever it may be. Definitely, Amit bhai. The thing is, we tell people, and a lot of traders who are still struggling are aware that they have to follow the rules and not take random trades. Just an example. But in the market, somehow something happens. They cannot control their emotional state, and they end up taking random trades. Why exactly am I doing that? Is a question that only I can answer. No one else can answer that for me, because the fact that I should not be doing that is obvious. And if I ask someone, even they will tell the same. But why am I doing that? What exactly is triggering me to take random trades or to cover up that loss that has just occurred, is something that only I can look inside myself and get the answer for, and yeah, fix it. There was something in Mahabharata. जब वो कुरुक्षेत्र में खड़े थे ना, तो अर्जुन ने बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मतलब आई वोंट फाइट अगेंस्ट माय ब्रदर्स. कृष्ण ने पूरी गीता समझा दी. गीता वहीं लिखी गई, गीता ने पूरी समझा दी गई अर्जुन को कि भाई ये करना ही पड़ेगा. जब वो भीष्म पितामह को मारने गया अर्जुन, तो बोलता है मैं भीष्म पितामह पे तीर नहीं चलाऊंगा. मतलब तो एज अ ट्रेडर हमारा वो हो जाता है कि नहीं यार मुझे तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है. फिर वापस उनको लेक्चर दिया गया, तब जाके वो समझे. सो वी कैन ओनली गाइड यू. मतलब अर्जुन को भी वो गाइडिंग फोर्स था कृष्ण. अगर हम अपने एक्सपीरियंस से कुछ आपको सिखा सकते हैं, वी आर नॉट कृष्ण भाई. ये पकड़ना भी मत, हम भी आप जैसे ही लोग हैं, आप जैसे इंसान है. हमने हजारों गलतियां करी है और इतना पैसा खोया है ना, तब जाके अक्कल आई कि भाई यही चीज करनी चाहिए, चीज नहीं करनी चाहिए. डेफिनेटली. तो जब अर्जुन नहीं समझ सका कृष्ण की बात, तो आप और मैं तो क्या, मैं कुछ बोल दूंगा, किरीट सर कुछ बोल देंगे, अभिषेक कुछ बोल देगा, कपिल कुछ बोल देगा, डॉक्टर साहब कुछ बोल देंगे, कौशिक कुछ बोल देगा. तो आप करना तो लास्ट में वही है आपको, जो आपको आपके मन में है. तो आपके मन को ऐसा कंट्रोल करो कि भाई मुझे तो इस बाजार में ना 30 साल टिका रहना है, इस कैपिटल को मुझे इतना बढ़ा देना है, पर मैं उसके लिए मैं पूरा डिसिप्लिन बनाऊंगा. जो भी रूल्स है अपने रूल्स लिखो, कागज पे लिखो, हार्ड लिखो. वो कंप्यूटर में वर्ड में टाइप मत करो, किताब में लिखो. 10 रुपए की किताब आती है, बुक्स जो आती है जो अपन बच्चों के लिए लिखा है, तो उसमें लिखो. और उसको है ना अपने जहाँ पे ट्रेडिंग डेस्क है ना, वहां पे जाके चिपका दो और उसको रोज पढ़ो. दिन में एटलीस्ट 25 बार पढ़ोगे ना, तो याद रहेगा कि मुझे ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं. क्योंकि गलतियां करना हमारा फितरत है. आप एल्गो भी बना दोगे ना, आप एल्गो को छोड़ के कूद जाओगे कि नहीं मुझे तो ये ट्रेड मारना है. या डॉक्टर साहब प्लीज गो एड.
Dr. Sir, you there? I don't think. Kapil, your I, views about. Amit bhai, I wanted to add one simple point here to this. मैं पहले मेंशन करना चाहता था, ध्यान से निकल गया. Yeah, Kaushik, go ahead. Go ahead. Yeah. So what I wanted to say is the urge to make money, the urge to जो जितना जल्दी पैसा बनाना है सबको, we need to control that urge. I would say it would make things a little bit easier if we have a stable job where we are not dependent on this trading income for our daily life, for our expenses, etc. It will make things a little bit easier, but उसके साथ में the hard work, the hustle is going to increase, but one should be ready to put in that work. जब वो अर्ज वो नेसेसिटी निकल जाएगी कि ट्रेडिंग से पैसा बना के ही निकलना है, मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक, जब पैसा बना के ही निकलना है, जब वो एक बार वो जरूरत हट जाएगी, उसके बाद में एक वो प्रेशर नहीं रहेगा. तो जब वो प्रेशर नहीं रहेगा तो थिंग्स थोड़े क्लैरिटी से हम लोग देख पाएंगे एंड चीजें ज्यादा नहीं पर एटलीस्ट थोड़ी तो इजी हो जाएंगी. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस अर्ज को कंट्रोल करना, ये चीज समझना कि इतना आसान नहीं है. एंड जब ऊपर से इतना प्रेशर होता है तो फिर चीजें हम लोग अपने आप के लिए ही खुद और डिफिकल्ट बना लेते हैं. तो अपने सर के ऊपर से वो प्रेशर हटाना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अगर कोई है तो जो अभी सिर्फ उसी चीज पे डिपेंडेंट है और अगर स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं आई वुड से कि गेट अ जॉब और कुछ तो ऐसी चीज करो जिससे यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस इनकम, योर ट्रेडिंग इनकम फॉर योर डेली लाइफ एक्सपेंसेस एट स्टार्टिंग स्टेजेस. बाद में एक बार हो जाओ सक्सेसफुल तो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, बट एट स्टार्टिंग स्टेजेस वो प्रेशर हटा दो अपने के ऊपर. Definitely, Kaushik bhai. Even as full-time traders, we still have a reserve fund through which we make our ends meet, and we have a balanced surplus for a certain amount of time, bare minimum 1 to 2 years. And I think I can speak for almost every full-time trader. It's not like even we expect to make money at the end of every month and withdraw it from our trading account and use it for our expenses. So as you said, when that pressure is removed, yeah, it makes things a bit easier. It makes performance in the markets a bit easier. Fair point. Kapil, Kapil bhai. add something. ये जो हमारा जो टॉपिक है आज का, कल पे वैसे हमने इस पे काफी बोला था कि लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल तो बन सकते हो मार्केट में, लेकिन वो बहुत मुश्किल है. मतलब मेरा जो हमेशा बोलता हूँ मैं, दिस इज द सेकंड टफेस्ट प्रोफेशन जो मैंने आज तक ट्राई किया है आफ्टर पॉलिटिक्स. ठीक है. सो जितना लोगों को लगता है कि जैसे मेरे पास कल एक फोन, दोस्त फ्रेंड का फोन आया रात, मुझे बोला यार मेरे 5 लाख रुपए ले लो और बस मुझे 10-15% महीने का दे दो. तो उन्हें क्या लगता है कि शेयर मार्केट को एक ऐसा कमरा, उसमें सुबह आदमी को बंद कर देते हैं और उसको बोलते हैं 3:30 बजे तक जितनी जेब में तू अपने भर सकता है भाई भर ले, और फिर शाम को 3:30 बजे बाहर से दरवाजा Kapil, I am dying laughing. मतलब 5 दे दो, 10% दे दो. हाँ. तो भाई मेरा भी ले ले, मैं दे देता हूँ, मैं रिटायर होकर हरिद्वार चला जाता हूँ. सो प्रॉब्लम क्या है ना, लोग रियलिस्टिक एक तो अप्रोच नहीं रखते कभी भी. सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही है. सबको 10,000 वाले को तो रोज 10,000 चाहिए, 10,000 कैपिटल है उसको डेली 10,000 चाहिए. सो पहला तो ये है कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनना मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, बट वो टफ है. मैं तो क्लियरली बोलता हूँ कि मैंने शुरू में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत रातें खराब हुई हैं, बहुत रात भर बैठ के. मैं तो हमेशा बोलता हूँ, देखो मैं एकदम खुला बोलता हूँ कि मैं तो कई बार रात को उठ के रोने लगता था, जबकि मेरे पे कोई डेब्ट नहीं था, कुछ नहीं था. तो मतलब वो एक पैनिक फेज आपको झेलना पड़ेगा इस मार्केट में, तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे. और वो भी तब जब ये जितना भी ज्ञान आपको मिलता है साइकोलॉजी में, जब उसको फॉलो करोगे. ज्ञान की कमी नहीं है. अब मैं कुछ नया ऐड करूँ कि साइकोलॉजी में ये कर लो, वो सब बहुत अवेलेबल है. हर किसी ने उसको 10-10, 20-20 बार सुन रखा है सबके मुंह से.
और सब वही घुमा फिरा के पॉइंट है कि भाई अपना रिस्क मैनेज रखो, अपने क्वांटिटी मैनेज रखो, किस चीज में कितना रिस्क लेना है, क्या स्टॉप लॉस आ रहा है उसके हिसाब से तुम्हारी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, पर ट्रेड तुम कितना रिस्क ले सकते हो वो मैनेज रखो बस। उसमें अब कुछ बचा नहीं है मार्केट में जो किसी को ना पता हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना इज अ टफेस्ट पार्ट। आप कितना भी बोल लो 100% कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, इवन मैं भी नहीं। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि महीने 2 महीने में एक आध दिन मेरा भी मतलब सब कंट्रोल करते करते मैं भी कुछ परसेंट रिवेंज ट्रेड कर देता हूँ आज भी। किसी किसी दिन वो हो जाता है बट फिर भी वो इतना ज्यादा नहीं जाता। मैं 1% का लिमिट है तो कभी किसी किसी दिन वो 2% तक चला जाता है, बस इतना। 100% परफेक्ट दुनिया में कोई नहीं है कि कोई बोले मैं एकदम 100% परफेक्ट हूँ, वो एकदम सरासर झूठ है। जैसा अमित भाई ने बताया कि वो जो दीवार पे आप रूल्स बना के लिख लो, वो मैंने एग्जैक्टली किया था। काफी कम लोगों को पता है, मैंने कल भी बोला था कि मैंने 3 वर्कशॉप टोटल मिला के अटेंड किए हैं अब तक अपने पूरे करियर में, जितना मैंने ट्रेडिंग की है। उसमें मैंने अमित भाई का भी एक वर्कशॉप अटेंड किया है 3 में से। चंडीगढ़ में मैंने उनका वर्कशॉप अटेंड किया था। सो उन्होंने वहाँ मुझे बताया था कि भाई जो भी रूल्स हैं, आपके कोई भी रूल्स हो सकते हैं कि मुझे इतनी क्वांटिटी में करना है, मुझे एक लॉट में ही करना है, मुझे इतने रुपए का ही ऑप्शन बेचना है, या मुझे कोई स्टॉक लेना है तो मैं पहले एसएल देखूंगा, अगर 20 पॉइंट का एसएल आ रहा है रिलायंस पे और मैं 1000 पॉइंट का 1000 रुपीज का पर ट्रेड लॉस ले सकता हूँ, तो मेरी क्वांटिटी हो गई 50। मैं 50 कैश में स्टॉक में ट्रेड करूंगा। तो जो भी आपके रूल्स है आप उनको बना के और लिटरली आप उनको अगर लगा लोगे ना अपने स्क्रीन के पीछे जो भी दीवार होगी आपकी, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। बस एक चीज करते हैं, कोई भी ट्रेड लेने से पहले उसको एक बार पढ़ लेना, जो भी आपके 5 6 7 10 पॉइंट होंगे उसको अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना, तो अगर आपका हाथ गलत भी चल रहा होगा गलत ट्रेड की तरफ तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो मैंने इसको पर्सनली किया है, वो अमित भाई के सजेशन से ही मैंने वो किया था और वो मेरे लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा। मतलब वो होता क्या, जैसे वो 21 डेज वाला होता है ना कि 21 डेज में कोई भी चीज हैबिट में आ जाती है, मार्केट में नहीं आती है भाई 21 डेज वाला मिथ मतलब पालना यहाँ पे। यहाँ कम से कम एक क्वार्टर लगता है। वो 21 डेज बाकी रूटीन लाइफ में आता होगा, मार्केट में नहीं आएगा। या मिनिमम एक क्वार्टर आपको चाहिए, 3 महीने। 3 महीने में जाके वो आपके ब्लड स्ट्रीम में थोड़ा थोड़ा आना, वो रूल्स एंड रेगुलेशन आने शुरू होंगे। और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि आप 100% उनको हमेशा फॉलो करोगे, वो इक्का दुक्का ब्रेक बीच बीच में होते रहेंगे, बट बहुत ज्यादा उससे परेशानी नहीं होगी आपको। सो मेरा तो इसमें यही ऐड करना था कि अपने सेट ऑफ रूल्स बना लो, अमित भाई ने जो बताया, और उनको दीवार पे चिपका लो। उससे ही आपका पैसा जाने से बच सकता है। रियलिस्टिक अप्रोच रखो, ज्ञान की कमी नहीं, ज्ञान वो सब दे रहे हैं, उनको बस इम्प्लीमेंट करना अब आपको शुरू करना पड़ेगा। अमित भाई मेरी तरफ से इतना ही था। Fantastic couple. Definitely, definitely. But I am so proud. I am so proud कि जिनको मैंने सिखाया है ना, आज वो मुझसे बहुत अच्छे ट्रेडर, मैं हमेशा बोलता था इनको, तुम सब मुझसे ना बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करके जाना। सो नाउ दिस फोरम इज ओपन. Now this forum is open. Anybody have any queries? They can ask a question. If nobody have any query, I think कि हमारा जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया। सब कुछ सब लोग समझ गए या किसी ने कुछ भी नहीं समझा। दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो सब समझ गए या किसी ने कुछ भी नहीं समझा। इफ यू हैव क्वेरी send us a request, cause max 12 I'll end this session. नहीं है हैंडल होगा आज तो बाद में रिप्लाई कर देंगे, डोंट वरी। आपका कुछ भी क्वेरी रहेगा मुझे टैग करके, जिससे भी आपको क्वेश्चन पूछना है उसको टैग कर देना, हम आपको रिप्लाई देंगे। सो इफ यू हैव अ क्वेरी सेंड मी अ रिक्वेस्ट as soon as possible. I accepted a couple of requests, Amit bhai. I think Harsh. Yeah, please go ahead. Harsh एक-एक can करके ask this question. और लिमिटेड समरी में क्वेश्चन पूछना, स्टोरी मत सुनाना, प्लीज गो अहेड हर्ष। हर्ष unmute yourself and ask a question, or Barkavi. And Abhishek, from next time, don't take a question from anybody who doesn't have a profile picture. Because we have shown our faces. I know you personally. So we'll not take a question from anybody who doesn't have a profile picture. Yeah, Barkavi, if you have any questions, please go ahead and ask. हेलो सर, ये हमको जानना था सर, ये मार्केट व्यू कल के लिए। कल का व्यू आप किसी के ट्विटर हैंडल में पढ़ लेना, कल का व्यू कुछ भी नहीं है।
कल का व्यू मैंने भी ट्वीट कर दिया, अभिषेक ने भी कर दिया रहेगा और 10 लोगों ने पोस्ट कर दिया रहेगा। ये है कि भाई आप सक्सेसफुल बन सकते हो कि नहीं बन सकते, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ये नहीं कल सुबह मार्केट क्या खुलेगा, हमें नहीं पता कल मार्केट क्या खुलेगा। और We सर have Harsh. Yeah, please go ahead, sir. हेलो हर्ष, go ahead. मेरा एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल मैं पिछले 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कैश में ट्राई किया था, फिर मैंने थोड़ा बहुत लर्न किया फ्यूचर एंड ऑप्शन में, फिर मैं कोई भी अभी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्टिक नहीं रह पा रहा हूँ। मेरे खुद के वर्ड्स पे भी, मेरे खुद के एनालिसिस पे भी मैं स्टिक नहीं रह पा रहा हूँ। हर्ष सिंपल काम करो, अपना रूल्स बनाओ। उस ओके रूल्स को लैपटॉप पे है ना, लैपटॉप आपका जो भी सिस्टम रहेगा उसके ऊपर है ना, जाके उसका प्रिंट आउट लो। मतलब ओके A4 साइज में मत लो उसका प्रिंट आउट, उसको है ना पोस्टर साइज में प्रिंट आउट लो और लगा दो, और बस दिन भर वही पढ़ते रहो कि ऐसा होगा तो मुझे ये करना है, ऐसा होगा तो मुझे वो करना है। इसका अलावा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और उसको 6 महीने फॉलो करो, ट्रेड जर्नल बनाओ, उसमें अपनी मिस्टेक्स निकालो और देखो मैं क्या गलती कर रहा हूँ और मैं कहाँ सही हूँ। इसके अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी आपका सिस्टम है बहुत अच्छा रहेगा। वी नेवर डिनाई दैट यू विल not have a good system. We appreciate that you have made a system, but if you're not sticking to it, it's your problem. या ओके सर, थैंक यू सो मच। And one thing, if I can add, uh, as Amit bhai said, make a note of the rules and also keep it in your mind what will be the consequences that will occur if you don't follow the rules, and यस are they the consequences you want to face, and is it something you will enjoy facing? No, right? या So एक्चुअली that is something we should consciously think about as to what can happen if we don't follow the rules. That will prevent us from breaking the rules to a certain extent. यस एक्चुअली या थैंक यू सो मच। So, any other questions, or I should wind up because I'm not getting any request. We have one question from Zahir requested. I've just added him as a speaker. Guys, if you have any request, do send me fast. क्वेश्चन मैं इंट्रा Yes, Zahir bhai, go ahead. थैंक यू। मैं इंट्रा डे ट्रेड करता हूँ और मेरा ऐसा बहुत बार हो रहा है कि पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, जो भी है छोटा बड़ा, नेक्स्ट ट्रेड मेरा दिल नहीं करता लेने के लिए, डर रहता है कि लॉस हो जाएगा और वो मैं फिर स्टॉप कर देता हूँ। तो ये करना चाहिए क्या? वो गल्ले वाली बात है कि शाम तक करते रहो और फिर एंड में देखो। भाई दिल से कुछ मत करो, दिल से जब करने आओगे ना तो दिमाग काम नहीं करेगा। जहाँ अपना दिमाग, जो भी आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो ना, अगर आप पैसा फर्स्ट ट्रेड में भी कमा रहे हो तो रूल्स बना लो अपने सिंपल रूल्स। मैंने रूल्स बनाए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है मेरा ट्रेड मिलता है बट वो हिम्मत नहीं, होती है। उसी को एक काम करो, ये समझ लो कि हम भगवान के मंदिर गए या अल्लाह के सामने नमाज पढ़ने गए, ठीक है? तो ये पकड़ लो कि भाई अगर मुझे 1 बजे नमाज पढ़ने जाना और 1:15 बजे हमारी नमाज खत्म, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है? तो हमें वही रूल फॉलो करने, हमें वही फॉलो करना, उससे ज्यादा हमें कुछ फॉलो नहीं करना है। उसको रिलीजियसली फॉलो करो। ठीक है। जब रोजा होता है आप क्या करते हो? सुबह से शाम तक भूखे रहते हो समझ ना? गया, मतलब ये मैं फॉलो करूंगा कि एक ट्रेड भी प्रॉफिट हो गया, रिलीजियसली फॉलो उसको भी करो, कंटिन्यू कर सकता हूं। नहीं, रिलीजियसली फॉलो करो उस चीज को। ठीक है। ट्रेडिंग को एक रिलीजन बना लो कि भाई ये ट्रेड मेरा रिलीजन है, मेरा ये जो मैंने सिस्टम बनाया मुझे इसी को मेरा सिस्टम ट्रेड देगा मैं लूंगा, मेरा सिस्टम ट्रेड नहीं देगा मैं ट्रेड नहीं सर वो लूंगा। सेकंड बार होता है, सिस्टम ट्रेड देता है लेकिन हिम्मत नहीं होती है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रैक्टिस करके होगा। हिम्मत नहीं, सुनो ना, या हिम्मत काम आएगी ना, फीलिंग काम आएगा ना, दिल काम आएगा ना, पैसा काम सिस्टम आएगा, काम आएगा। इमोशंस। बस अपना सिस्टम बना के छोड़ गॉट दो इट। और उसपे 1000 ट्रेड लो। ये पकड़ लो कि हम जाके इबादत तो करने ये गए, आपने कभी हमें एक्सपीरियंस रोज किया है क्या ये सब? मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मतलब सेकंड ट्रेड सबने किया, ये जितने 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 हम सब लोग बैठे हैं ना, हम सबने किया, इसके लिए हम पूरा सिस्टमैटिक हो गए। ओके गॉट इट, या थैंक यू। So I don't think, Abhishek, there is no one left, na? There's one request, one final request. I'm adding them now. For that, I'll close this session. Yeah. Market Redemption. That's the handle's name, please.
Speak up. Ravi Shukla, please ask your question. ठाकुर साहब आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, या गब्बर नहीं बैठा है. Whoever gets an opportunity can ask a question as soon as possible. Good evening, sir. I'm audible. Yeah, audible. Go ahead. सर एक्चुअली मैं मार्केट में पूरी तरह से नया हूँ, और जैसे कि यहाँ पे क्या है ना कि कोई बोलता है फंडामेंटल सीखो तो कोई बोलता है टेक्निकल सीखो सर. तो न्यू जो बिगनर है सर उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या उसको फॉलो करना चाहिए सर? आपको क्या अच्छा लगता है? फंडामेंटल अच्छा लगता है, फंडामेंटल फॉलो करो. आपको टेक्निकल अच्छा लगता है, टेक्निकल फॉलो करो. कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है सर. ये आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है आपको क्या सीखना है. अच्छा, ये आपको ही डिसाइड करना है. जिस दिन वो डिसाइड हो जाए कि भाई मुझे फंडामेंटल अच्छा लगता है, टेक्निकल अच्छा लगता है, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ कि मैं 10 साल का इन्वेस्टर हूँ, मैं बैलेंस शीट एनालिसिस कर सकता हूँ, कि मैं चार्ट एनालिसिस कर सकता हूँ, या मेरा कुछ सिस्टम बना सकता हूँ जो फंडामेंटल में भी काम करेगा, या मुझे फंडामेंटल टेक्निकल दोनों मिक्स करके लेना है, वो मुझे करना है. ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका है, लॉस भी आपका जाएगा. उस लॉस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, उस प्रॉफिट के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा. क्योंकि लॉस करोगे तो गाली देने मुझे आ जाओगे, प्रॉफिट करोगे तो प्रॉफिट का तो हिस्सा मुझे घर पे नहीं भेजोगे ना. एकदम सही, एकदम सही सर. तो ये आपको डिसाइड करना है, आपको जो चीज सूट करती है. पर्सनलिटी देखो कि भाई मैं रोज मार्केट देख सकता हूँ, हफ्ते में एक बार देख सकता हूँ, महीने में एक बार देख सकता हूँ, कि मैं तो 24 घंटे सिर्फ मार्केट ही देखता हूँ. उसके हिसाब से आप डिसाइड करो. जी जी जी. ओके, सो अपनी पर्सनलिटी पहले निकालो. ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक रवि गो अहेड. तो अपनी पर्सनलिटी पहले निकालो. सर क्वेश्चन करें या क्लोज? श्योर. हाँ तो सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ये नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ के लिए हम थोड़ा लंबा बड़ा सा ट्रेड करें या फिर शॉर्ट ट्रेड जो करते हैं 40-50 पॉइंट कर रहे हैं 10-15. भैया ये फोरम एक ही पर्पस के लिए है. मैंने स्टार्टिंग में शायद आप बहुत लेट ज्वाइन हुए. ये पर्पस इसके लिए नहीं है कि कल सुबह निफ्टी क्या खुलेगा, एक हफ्ते में क्या होगा, कल सुबह की 5 मिनट की कैंडल क्या होगी ना, हम में से किसी को नहीं पता. कल सुबह ओपन का होगा ये हम में से, अगर हमारे पिताजी को पता होता ना, हम पूरा पैसा वहां डाल देते. तो क्या होगा वो हम रोज डिस्कस करते हैं, जब रोज स्पेस करते हैं ना उसमें वो डिस्कस करते हैं कि कल सुबह क्या पॉसिबिलिटी लगती है. बाकी सब अपने लेवल पोस्ट करते हैं. आपको जो अच्छा लगे अपना स्टडी करो, अपना एनालिसिस करो, वो चीज करो. आज का फोरम अलग चीज के लिए, उस चीज के लिए नहीं है. सॉरी टू से. ओके ब्रदर, डोंट फील बैड. So Abhishek, I think everybody is done. Yeah, There is no request pending. No, there are a few requests. They just come in. Yeah. Ask We them have to 10 come more fast. minutes. Yeah. Yeah. Rachit, please ask your question. Sir, I want to ask just one question that while I am designing my portfolio, I am unable to find out that how to actually create my universe, because while I have started to design my portfolio from April 2020, and I currently hold around 540, 550 stocks in my portfolio. How did I own it? Because I was buying each and every breakout, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा. अब जब जहाँ पे मेरे लूजर्स होते जा रहे हैं, मैं उनको हटाते जा रहा हूँ, और जो जो विनर बन गए वो बनाते जा रहा हूँ. बट क्या ऐसा कोई तरीका है कि जिसमें आप ये डिफाइन कर सको कि मेरा यूनिवर्स ये होगा, और उसमें मैं मतलब सभी तरीके से की चीजें या सभी सेक्टर या सब कुछ ले पाऊँ, और मतलब is there a way you create your universe, मतलब while you are trading or creating your watch list? भैया 550 स्टॉक अगर फॉलो भी करते हो ना, और पोर्टफोलियो में भी है, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको, कल सुबह जाके सब एक बार बेच देना. नहीं मैं सिंपल बोल रहा हूँ. नहीं, सुनो एक मिनट सर, एक चीज बस आपको एक चीज छोटी सी चीज बस बोलना चाहूंगा यहाँ पे. सर ये जो स्टॉक्स जो सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, या ये जो जिस तरीके से कर रहा हूँ, दिस इज अ बैक टेस्टेड टेक्निक. आई हैव टेस्टेड इट ओवर 24 years टाइम फ्रेम, और 24 years, एंड दिस इज हाउ आई गॉट बिलीफ इन दिस सिस्टम.
तो मतलब बेचने का तो उसमें पॉइंट नहीं बनता, बट मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि क्या इसको मैं और बेटर कर सकता हूँ कि कि और कोई ऐसा तरीका है कि जिसको मैं मतलब क्योंकि मैं ट्रैकिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई कैन ट्रैक देम इजीली, दिस इज नॉट अ इशू फॉर मी, आई एम ट्रैकिंग देम, आई हैव बीन रनिंग दिस सिंस 24-25 मंथ्स नाउ, मुझे वो इशू नहीं है। बट मुझे इशू सिर्फ ये है कि क्या यूनिवर्स क्रिएट करने का कोई तरीका है हमारे पास कि नहीं। सबसे पहले तो अगर आप 5.5 स्टॉक पकड़ के बैठे हो ना, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग। ओके, इससे बेटर है कि आप कोई जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, जो निफ्टी 500 ट्रैक कर रहा रहेगा, कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सर तो अपने आप आपको कमा के सर देगा। उनसे ज्यादा मतलब पॉइंट ये है कि सर उन 550 स्टॉक्स में जो एलोकेशन है वो भी मेरी साइंटिफिकली डिराइव्ड होती है, या मतलब एक कैलकुलेशन के थ्रू डिराइव्ड होती है। अगर आपने डिराइव कर लिया, सब कुछ आपके पास है, तो मैं ना अभिषेक ना कपिल कोई भी हमें से जवाब नहीं देता। अगर आपने कुछ बैक टेस्ट कर लिया, आपको सिस्टम प्रूवन है, तो हमें से कोई जवाब देने के लायक ही नहीं बचा। नहीं सर, मतलब मैंने आपको सवाल जो पूछा वो ये है कि मतलब आप लोग जब ट्रेड कर रहे हो या आप लोग मतलब आप लोग जब चीजें कर रहे हो तो हैव यू डिजाइन्ड अ टेक्निक, मतलब जो मेरे को सबसे बड़ी समस्या अभी आ रही है ना मेरे सिस्टम्स में वो यही आ रही है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट कम अप टू मतलब कम ऑन द रेडार, मतलब दैट आर वेरी हाई। इज देयर अ वे आई कैन रिमूव देम, और इज देयर अ वे कि मतलब मैं अपना यूनिवर्स कम कर सकूं, या यूनिवर्स को कैसे आप बनाऊं मैं? निफ्टी 50 चले जाओ, निफ्टी 100 चले जाओ, उसमें ट्रैक करो, उसमें जो स्टॉक आए लेते रहो, क्योंकि दोज आर द बेस्ट 100 स्टॉक्स अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, तो आपका रिसर्च जो 1000, 2000, 5000 स्टॉक पे था ना, वो लिमिटेड हो जाएगा 100 स्टॉक्स पर। उस 100 स्टॉक का बैक टेस्ट करो, उसमें क्या रिजल्ट मिलता है उस पर काम करो। मतलब सर आप बेस्ट स्टॉक्स में चले जाओ ना, मतलब सर नहीं तो निफ्टी के 50 स्टॉक पकड़ लो। One more thing, Rachit, that I'd like to add on. See, if you want to filter your stocks, first you have to know what is the criteria on basis of that you want to filter. Are you right now holding these stocks on what particular time frame? That is question number one. Second one, are you looking at momentum? Are you do you only wish to trade momentum? Yes. Or do you wish to hold it on for a much longer horizon? Sir, So there are a lot of factors at play by which you can decide to filter stocks for your own requirement. Okay. Sir, if someone is a day trader, just like if someone is a day trader, they may look for volume burst or breakout of any a weekly high or previous weekly high or weekly low. But that may not be applicable for you because none of us here exactly know your criteria or your requirement. Correct. Sir, the system that I am following or the is मतलब जो मैं ये stocks चुन रहा हूँ और ये stocks जो अपने portfolio में add कर रहा हूँ, that is a monthly system. Basically, I am following the larger time frames on the monthly time frame पे, और हर महीने की सिर्फ 1 तारीख को ही पैसा लगाता हूँ। बाकी के 30 दिन में कोई काम नहीं करता हूँ, मतलब, और सिर्फ 1 तारीख को लगाता हूँ पैसा। बट समस्या सिर्फ इतनी है कि उसमें इतने शेयर्स आते हैं, मतलब मैं खरीदने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खरीद भी रहा हूँ, मैं सिस्टम से कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ यही जानना है कि मतलब जो इतने स्टॉक्स आते हैं और उसमें चलने की तो प्रोबेबिलिटी हमें किसी को भी नहीं पता होती कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। मतलब जैसे निफ्टी 100 की आपने निफ्टी 100 की बात जैसे आपने कही, अब इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉक है, जैसे आरपीजी लाइफ साइंस जैसा स्टॉक है, या फॉर एग्जांपल कोई डायनेमिक प्रोडक्ट जैसा स्टॉक है, दैट हैज गॉन अप अ लॉट फॉर मी इन लास्ट 2-3 इयर्स। ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं जो 200-300 करोड़ मार्केट कैप पे अवेलेबल होते हैं, विच आर मतलब ये सब छूटते हैं उसमें, एंड विच आर डिसेंट मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज। तो उस चक्कर में मेरे को ऐसा लगता है कि रचित उसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ। आपको लग रहा है कि इसने बहुत रिसेंट रिटर्न दिया, बट आपका कैपिटल लोकेशन अगर 500 स्टॉक पकड़ लो, मैं पकड़ता हूँ, कैपिटल भी 1 करोड़ रुपया रहेगा, क्योंकि 500 स्टॉक खरीद रहे हो, सब में 10,000 रुपया भी डालोगे, मिनिमम 50 लाख से 1 करोड़ का कैपिटल रहेगा, राइट और रॉन्ग? राइट, पक्का? राइट। तो अगर इतना कैपिटल है तो फोकस शिफ्ट कर दो छोटे यूनिवर्स पर। उस छोटे यूनिवर्स में जो है, देखो हर चीज हर बंदा नहीं पकड़ सकता, कितने भी सिस्टम लगा लो, किसी के पास कितना भी कैपिटल रहेगा ना, तो हर चीज हम नहीं पकड़ सकते। मेरा फोकस सिंपल है, निफ्टी बैंक निफ्टी। मेरे पास बहुत बड़ा कैपिटल, मैं फिर भी निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ। करेक्ट सर, मेरा फोकस जाता ही नहीं, क्योंकि आपका फोकस 500 जगह रहेगा ना। मैं आपको कैंडिडेट तो एक दिन ऐसा आएगा जब
मार्केट ने अगर गलती से लोड सर्किट मार दिया, वो सारे स्टॉक नीचे दिखेंगे, उसके बाद लोड नीचे दिखेंगे, आपको एग्जिट ना मिलेगा। ये देखो, बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि मैंने 500 स्टॉक में डाला, भाई 500 स्टॉक रोज ट्रैक करना। मैं आज भी पूरा निफ्टी, मुझे है ना पूरे निफ्टी के सारे स्टॉक्स देखने में, मेरे पास पूरा लिस्ट लगा हुआ है, वो मुझे देखने में ना 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगता, क्योंकि मुझे सब स्टॉक की लेवल सब कुछ याद है। ठीक है, क्योंकि मैं 20 साल से बाजार में हूँ। आई थिंक यू आर वेरी यंग, योर एज इज वेरी यंग, सो फोकस डाउन टू समथिंग वेरी गुड which will give you multiple returns rather than focusing on 5,000 stock. Shift your focus to 100 stocks only. जाने दो ना, बाकी देखो हर चीज अपन पकड़ने का, टॉप बॉटम सब सारे स्टॉक जो भाग रहा हो मेरे पास है, जो स्टॉक गिर रहा है मैंने एग्जिट कर दिया, ये फिलॉसफी से बाहर निकल जाओ। दैट इज माय ओनली सिंपल आंसर। सर ये जो सवाल मेरे मन में आया, इसका मैं आपको एक छोटा सा वो दे देता हूँ कि ये क्यों मैंने, मतलब मैं इस पे क्यों इतना वो हूँ, कि ऐसा हुआ कि जब मैंने सिस्टम को बैक टेस्ट किया ना, तो मैंने ये देखा कि जो मेरे सिस्टम में जो सबसे बड़ा शेयर बन के आया, मतलब जब मैंने, मान लीजिए मैं 1996 से बाजार में था और मैंने टेस्टिंग करके जब उसको देखा, तो मैंने ये पाया कि बर्जर पेंट्स मेरा सबसे बड़ा शेयर बना। मतलब उसके अंदर मेरी एलोकेशन, बैक टेस्टिंग आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जरूरी बजट पेंट वापस ऐसे चले, बजट पेंट यहाँ से अगर 50% नहीं, एक मिनट सर, बैक टेस्टिंग इज अ डिफरेंट फैक्ट, cause you are back testing, cause you know coding, you know everything. I understand that fact. Absolutely fantastic. मैं आपको ही बोल रहा हूँ, अगर आपको 500 स्टॉक में पैसा डालना है ना, तो आप कोई भी जो मिड कैप का फंड चल रहा होगा ना, म्यूचुअल फंड का, उसका बैक टेस्टिंग कर लो कि भाई वो म्यूचुअल फंड भी उतना रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसका 1-2% का चार्जेस रहेगा, प्लस ट्रैकिंग एरर का 0.05 से 1% का ट्रैकिंग एरर रहेगा, तो 1% का क्यों इतनी मगजमारी करने की, इससे बेटर कुछ आप उसमें म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के कोई और चीज सोचो। अगर आपको बैक टेस्टिंग ये सब कुछ नया प्लेटफॉर्म बनाने का सोचो कि जिसमें आप नया कुछ कर सको, तो 500 स्टॉक डालना इज मतलब, from my side you must be absolutely doing correctly, but from my side it is absolutely wrong way to look in the market, because I've been almost 18 years in the market and even I don't carry 500 stocks in my portfolio. मैं 30-40-50 जो स्टॉक समझ में आता है वही ट्रैक करता हूँ। नो सर, इन जनरल मैंने किसी से भी ये सुना भी नहीं है कि इन जनरल भी आपको बताता हूँ। हाँ, म्यूचुअल फंड वाला नहीं, म्यूचुअल फंड वाला क्यों रखता है कि उसके पास रिसर्च की टीम होती है, वो रिसर्च की टीम में इतने लोग होते हैं, या तो आप अपने इतना कैपिटल रखो कि रिसर्च टीम बिठा दो, सब रिसर्च करवाओ, फिर उसमें 1 करोड़ क्यों, 5 करोड़ का 50 करोड़ का कैपिटल डालो, नो इश्यूज विद दैट। नहीं सर, इंडिविजुअल लेवल पे करने जाओगे ना, देखो आपको सिर्फ बहस करनी है तो बहस कर लो, उस बहस का कोई एंडिंग टॉपिक नहीं है, बट जितना मुझे समझा सकता था मैंने आपको समझा दिया। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया सर, एंड आई कम्प्लीटली कॉन्कर विद योर व्यू एज वेल, कि मतलब इन जनरल मैंने सभी से यही सुना है कि हर कोई यही बोलता है कि 50 स्टॉक 40 स्टॉक इस टाइप से, बट वही है कि मेरा मतलब कंसर्न सिर्फ वही आता है कि हाउ टू क्रिएट, मतलब जैसे आपने निफ्टी 100 निफ्टी 200 इसी टाइप की मुझे सलाह जनरली मिल रही है कि ये कर लो या 500 स्टॉक ले, इसमें से निकाल लो ऐसा करके, बट वही मतलब आई जस्ट फील कि आई मीन वो करने से मैं कई ऐसे छोटी स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी जो 200-300 करोड़ पे है, मैं उसको बाहर कर देता हूँ मेरे सिस्टम से, जो मतलब मेरे लार्ज। आप अपना बैक टेस्टिंग ऐसा बनाओ, आप अपना बैक टेस्टिंग ऐसा बनाओ कि भाई मुझे तो है ना, मेरा मार्केट कैप कंपनी का होना चाहिए 500 करोड़ के नीचे का, वो बैक टेस्टिंग करके देखो, उसमें से कितनी कंपनियां उठ जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो चीज देखो ना। करी सर, मैंने वो भी करके हाँ, देख लिया। तो you cannot catch every stock, that I can guarantee you, that I can guarantee you from a personal experience. Even today's date I track 2000 stocks per day. It takes me 1 hour. मुझे 1 घंटा लगता है सारे चार्ट में, है ना, एक सेकंड में मुझे चार्ट समझ में आता है तो मैं रुकता हूँ, अगर मुझे 1 सेकंड में चार्ट नहीं समझ में आया ना, मैं चार्ट पे रुकता भी नहीं। दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू। ओके, क्योंकि मेरी आंख मुझे बोलनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। दैट्स इट। नाउ दिस क्वेश्चन इज एंडिंग। This is and one last two questions. Yeah, Abhishek, good. Last two questions, and I'm ending this space. And one point from my end, Rachit, you cannot have it both ways, that you restrict your filtering to a set number of stocks based on market cap or any other factor, and at the same time also capitalize the moves that are occurring in low float stocks. Either you cover everything, or
you stick to a certain bunch of stocks, and you have to be comfortable with missing out on the rest. Just to give you my example, I mainly trade in Nifty and Bank Nifty, and I also track and trade in stocks sometimes. The stocks, the way I track it is that I made sectoral watch lists for every sector, right? Not just based on market cap, but let's say pharma, auto sector, and metal sector, that way. And I have the top 5 to 10 stocks in the sector based on their weightage in those sectors. ये सब information easily NSE site के ऊपर मिल जाएगा. Correct. And the logic Correct. behind me doing that is because I am a short-term trader, and if at all a sector is going to do well, I can already begin to see the initial signs in the heavyweights of those sector. Correct. And that is my logic behind it. So you have to form your own logic first, know what exactly you want, with the realization that you cannot have everything, plus make a set of defined rules for what you want and follow that. Mhm. Yep. Thank you, sir. Thank you so much. Let's take next question. That's it. DM me. I'll send you something. You backtest it and send me the results, and then we'll work on something. Okay? Yes, no Don't problem, worry sir. about it. Thank you. Thank you so much. Yep. Hey, Noman Ali or yes. So go ahead, please. hi, Sudarshan here. Actually, I'm a purely index trader, Bank Nifty and Nifty. So my problem is that I have a setup, but I am an option trader, option buyer purely. In that things, many times the spot price gives me a breakout, and then gives me it for a some time it gives a pullback as well, and it is a normal thing. But in option, when you trade option, yours, Sudarshan, yeah, yes, before sir. you complete your question, I must interrupt you. This is not about this thing. We'll have a separate option buying session altogether. So in Okay, this session, I'll not be replying to you. Next okay. session you join in whenever we have a option buying, because we are planning something very big, so that Mhm. every aspect of market is covered over there. This is about how Okay, can one become a successful trader in the long run. So I will not be able to answer, nor I'll allow anybody to answer. So please take this okay, as a absolutely. request, because I want to Yeah, end yeah, this session. absolutely fine. I'm You absolutely consider, fine. I will wait for your next yeah, session. No absolutely. problem. Thanks. Thank you. Noman, Thank you. you have any questions? Noman, unmute yourself and you can ask a question. Hello. If Noman doesn't have a question, Deepak can ask his question. The last, Deepak, no ask your more requests, question. guys. No more No more requests for the day, request. folks. I'm now not accepting any request. I'm ending this session after Deepak's question. And still with the topic that we are talking. Yeah, going on the topic itself means I've just started. So, what will be your? Obviously, you said you have got 24 years of experience. So, to become a successful trader, what and how what one should start? Make your rules, follow those rules, and stick to the rules. Make your rules, follow those rules, and stick to only those rules. Uh, yeah, that's fine, but any guidance would be very much appreciated. So, what guidance I can do? Tell you. Make your own rules. Take 100 trades on whatever rules you make. Check out what is happening, what is not happening. Make a trade journal out of it. See whether it is working for you or not. If it is working for you, fair enough. If it is not working for you, leave that. Try to modify your system and reach a level where you are very comfortable. If you are not comfortable doing that, make your own set where your risk is proper, your positioning is proper, and where you can reach to a certain level. Nothing more than that. That I can add to it. But how one can learn this? See, you need to read good books. There are so many books available, technical, fundamental, psychology, everything is available. Just do a simple Google, you will get all the things. Okay, thank you. Thanks, Deepak bhai. Probably the last one is Preeti को request भेजा वो सुनती नहीं है. Preeti, you are the last one to speak. After that, I am closing this space.
Because we generally will have a hard stop at 11:30 maximum, extending to 12. Post 12, no questions to be asked, no answer, nothing to be answered. So we cannot come on the time. Yeah, Preeti, go ahead, Anindya, please. sorry, I was having a mic issue. So for me, a easy and one-liner answer to the question that how one can become a successful trader in a long run is probably, when somebody starts disconnecting their mental phase and emotional phase. I think बहुत दिमाग से काम करना है. हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं while trading. तो जब आप इमोशनल होना चालू करते हैं ना, तो आप रिवेंज ट्रेड्स करते हैं. तभी आप लॉस सेम डे रिकवर करना चालू करते हैं. तभी आप ये भूल जाते हैं कि रिस्क कितना मैनेज करना है और क्यों मैनेज करना इम्पोर्टेंट है. सो आई थिंक यहाँ पे ना द गेम विच हैज टू बी प्लेड इज टू डिफरेंशिएट अ लॉट बिटवीन योर मेंटल एंड इमोशनल कोशेंट. सो वो बाइफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. द मोमेंट यू स्टार्ट लर्निंग दैट इमोशंस को हावी नहीं होने देना है, I think your journey is extremely sorted. And when I talk about emotions, it is all about everything. Revenge. It is about getting sad. It is about not cutting your losses. It is about not booking your profit. Greed. So these are all our emotions. So I would not say कि एक दिन में conquer हो जाएगा. एक दिन में you'll be able to make your emotions under your control. But then again, हो सकता है जब हम थोड़ा ये अपना इमोशंस को कम करके अपना जो मेंटल फोर्स है वो ज्यादा आगे रखें. लाइक इट शुड बी वन स्टेप फुट फॉरवर्ड. देन आई थिंक प्रॉब्ली चीजें हो सकती है. पर वो बहुत इट्स अ हार्डवेयर लेसन. पीपल लर्न इट वंस दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग. एंड जब वो सारा चीज लूज हो जाता है तो फिर ये ज्ञान आके भी कुछ नहीं होता. सो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीपल शुड हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि दो अलग चीजें हैं. जो साइकोलॉजी 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 आके सब बोलते हैं व्हाट इज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज जस्ट सिंपल दैट अपना जो एग्जीक्यूशन है वो अलग रखो, अपना इमोशनल क्वेश्चन अलग. आपने लूज कर दिया ना, ट्रेड कर दिया, दैट्स प्रीटी ओके. एंड यू आर अलाउड टू डू दैट. एवरीबडी फेल्स from the beginning. Even you were in nursery, you were in college, everywhere you have not been a 100% scholar. You have failed, you have got second grades, you've got third grades, so that's pretty okay. यहीं पे आके आपको स्टार क्यों बनना है? Try to learn, try to control your fear, your greed, your sadness, your madness, whatever it is. So once you start controlling it, once you have that confirmation on it कि नहीं, एक स्टॉपेज होना चाहिए, you are done. That's it. यही है आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल. क्योंकि बाकी सब लोग चीजें आके बोल के चले जाते हैं, एनालिसिस कर लो, एग्जीक्यूशन कुछ काम नहीं आता. अगर कुछ भी काम नहीं आ रहा है ना, तो एक चीज काम आएगा, अपना इमोशंस कंट्रोल कर लो, स्टॉप ट्रेडिंग और डोंट ओवर ट्रेड, और जो आ गया उसको लेके घर जाओ. दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. बट नहीं एक दिन में ही अंबानी बन जाना है तो फिर हो गया, जो लेके जो आता है वो भी चला जाता है. So I'm sorry, I have been very harsh today because I have answered so many people today and I have been, listening people on the same track. मेरा एक दिन में 50,000 का प्रॉफिट हुआ, बट उसी दिन 40,000 चला गया. क्यों किया भाई आपने ट्रेड? आपको 50,000 प्रॉफिट आ रहा था, you should have stopped. No, on the same day you want to get 1 lakh, then that is your problem, boss. Nobody can help you then. Stop your emotions. This is business. Treat trading as a business. आप लोगों, I have seen many traders, who come and tell कि इसको, people don't take it as a business. People don't appreciate, it as a business. क्योंकि because you are gambling, boss. You are not you are yourself not treating it as a business. Treat things as business. Control your emotions. Ensure that ये तो इतना अच्छा opportunity है आपके पास, basic capital लगाना है and you're getting returns. You're not having 100 problems. I have been an entrepreneur myself. I know entrepreneur goes through so many things. आपके पास ये वाला problem तो नहीं है, but अपने emotions control करने हैं, analysis execution लगाना है and it's done. But नहीं, वो भी नहीं कर सकते हैं. तो there is no point in people who cannot have a restrictions on their emotions. They can never be successful traders. That's the biggest conclusion I can give to people. Definitely, definitely. That's wonderfully summed, Preeti. People who can't control their emotions cannot become successful trader. That's definitely true. I mean, I get this question a lot: how to avoid emotions in trading? The harsh answer is that you cannot avoid emotions, because as humans we keep feeling something or the other at every single second that we live.
don't you think Amit bhai or me or anyone else, or even I even see Ankur bhai in this space, don't you think we don't feel tired at the end of a trading day? Don't you think we don't get frustrated sometimes in our trading? We absolutely do, we definitely do. And don't you think we don't make mistakes sometimes? We certainly do. The only difference between professionals and losing traders is that we don't make the same mistake over and over again, and our mistakes don't cause irreparable or irrevocable damage to our accounts. That is the key thing there. Yes, Amit bhai. So the ending remark from my side is, which I used in first of my presentations, which I ever did in my life. मैं कभी प्रेजेंटेशन नहीं करता था, मुझे बोलना भी नहीं आता था. मतलब मैंने एक बार मेरी कंपनी को, जब मैं जॉब करता था, रिप्रेजेंट किया था, आईपीओ था. मुझे बोला गया आप स्पीकर बनो. उनका साला मैं स्पीकर बन के करूंगा क्या? मेरा सिंपल था, मैं स्पीकर बन के बोलूंगा क्या? मैंने मेरे जो सबसे क्लोज फ्रेंड थे उनको पूछा कि भाई मैं बोलूंगा क्या जाके, ये बता. तो बोला तू, आई वॉज, मतलब इट इज वे बैक इन 2018 और 19. आई वॉज इन्वाइटेड एज स्पीकर ऑन सम बिग फोरम. इनका मैं जाके बोलूंगा क्या? मैं तो सट्टा करता हूँ. मैं तो, कोई पब्लिक पूछेगा क्या करता है, मैं बोलूंगा सट्टा करता हूँ. तो बोला तू जो करता है वो बताना. मेरा फर्स्ट वहां पे एक चीज था, भाई इमोशंस रखना है ना, इमोशंस रखो सबसे पहले अपने देश के लिए. बी विथ योर कंट्री, देन विथ योर फैमिली, देन विथ योर फ्रेंड्स, एंड देन एनीबडी यू नो. और ट्रेडिंग में अगर इमोशन लेके आओगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है पक्का मेरे पास आएगा. तो इमोशंस घर पर रख के आओ, मार्केट में इमोशन लेके मत आओ. मार्केट में जिस दिन आप इमोशन लेके आए, ये गारंटी है कि अभिषेक पैसा ले जाएगा, प्रीति पैसा ले जाएगी, हम में से कोई आपका पैसा ले जाएगा. इमोशंस रख के ट्रेड करना ही नहीं है. आई हैव अ यूट्यूब वीडियो ऑल्सो ओवर दैट इज फ्री. वो जाके सुन लेना. मैं कुछ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एब्सोल्युटली आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ, बट वो जाके सुनोगे ना, 1.5 घंटे का स्पीच है. वो भाषण नहीं देता मैं, क्योंकि मैं 18 साल से मैंने इतने पैसे खोए ना बाजार में, और घर से इतनी गालियां सुनी है. तो इसके लिए मैं बोलता हूँ भाई इमोशंस तो घर पे रख के आना, बाकी बाद में देख लेंगे. इमोशंस अपने देश के लिए रखो ना सबसे पहले. साला कल को कोई देश में अटैक कर देगा तो जाके पहले खड़े हो जाना ना. नहीं हमारा तो पैसा गया, पैसा तो सबका जाता है प्रीति, प्रीति पैसा सबका गया. हाँ Definitely, Amit bhai. understand. The thing एक is, चीज, एक क्वेश्चन, I would like to ask everyone, like, you guys can answer. अगर आपको गाड़ी नहीं चलाना आता है एंड आपको लर्निंग लाइसेंस मिला हुआ है, व्हाट डज दैट मीन? आपको लर्निंग लाइसेंस के साथ देयर इज अ ऑब्लिगेशन, राइट, दैट यू हैव टू हैव somebody who drives next to you or who drives with you, right? And if you are not letting this rule of if you're not following this rule, then what is going to happen is that you are either making a dent or you are making an accident. So there are two things, या तो आप एक्सीडेंट करके बच या तो आप डेंट करके बच जाओगे, या तो एक्सीडेंट करके बच जाओगे, या तो फिर यू लूज योर लाइफ. So it is as similar as that. If you are having a learning license, it means if you're learning trading, don't try to act too smart and don't try to act, or execute your trades too smart so that you lose everything. That means you lose your life. That means that you lose your capital. So that is most important thing first for people who are trading nowadays and who are like freshly trading. Now the second point which comes here is that people who want to be who want to be successful traders, please, under guidance of some strong trader or some strong person whom they consider that they have achieved something, or they can be someone who can help them in learning, not in executing trades. These are two different things. So learning, like, Abhishek is an excellent person, Amit bhi is an excellent person who can give learning. So I think जो learn करा सकते हैं आपको, somebody who can make you learn how to drive is a person who you should follow. So once you're following that, I think you will gradually learn how to trade. And then this is a gradual process. People want to become super quick, super rich, which is a very rosy picture, but in maybe in a fraction of a second you can go zero. So try to understand that you have to learn, and that is also gradual, and then you can become a trader, and then success comes later, and that is very later, because nobody nobody out of the entire journey who's been trading can tell you that I have become a successful trader in a night, or in 2 months or 6 months of time. There are many lucky people who have who have actually conquered it maybe in a year of time.
but there have been people who have done it like for decades, and they're still improvising themselves. So That to become successful trader, it is a long term game. If you want a short term game, invest and just sleep. There's nothing to do, something like trading. That is not gonna work for sure. True. What people don't understand is that they have to trade responsibly, because there are people far more smarter than us with far better technology than us in these markets. If you don't trade responsibly, they are going to grab your lunch money. It's simple as that. And there's no point crying about it later, because that's the way the markets work. And one more point I'd like to add: anyone who has any perceptions about the markets, अमित भाई का एक वीडियो है ट्रेडर्स कार्निवल, आई एम नॉट श्योर, आई रिमेम्बर द ईयर, बट ट्रेडर यूट्यूब पे कार्निवल है का वो वीडियो। ट्रेडर कार्निवल ओपनिंग, स्पेशली अमित भाई का ओपनिंग 10 मिनट आप सुनो। He talks about the so-called operators, about Holy Grail system and everything. उसको बार बार सुनो प्लीज। The way he presented that, I really liked it. अभिषेक, दैट वाज माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ। वो मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन जिंदगी का था कि मैं पब्लिक में जाके जॉब में था। मैंने एक अलग प्रेजेंटेशन दिया था क्योंकि मैं जॉब में था। उस जॉब 2008 में जब मैंने 2009 में सॉरी जब जॉब छोड़ी थी, उसके बाद फर्स्ट प्रेजेंटेशन था पब्लिक फोरम पे। आफ्टर दैट आई हैव रिजाइन फ्रॉम माई जॉब। पोस्ट दैट आई वाज ओनली डूइंग ट्रेडिंग। मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, सिर्फ ट्रेडिंग से मैंने पैसा कमाया। और कितना कमाया, बॉम्बे में रहता हूँ, मेरे पास छोटा मोटा घर है, ठीक है, मैं वो नहीं बोलता बहुत बड़ा घर है, जो भी है अच्छा है। बट जब मैंने वापस वो चीज रिपीट करता हूँ, जब मैंने वो चीज बोली ना, तो पीपल वर सो इम्प्रेस्ड कि यू हैव स्पोकन योर हार्ट आउट। मैंने कहा भाई जो मैं करता हूँ वही बता रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊंगा। जो मैं करता हूँ वही बता सकता हूँ ना, मैं जाके तो ही नहीं बोल सकता मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, Definitely. ऐसा वैसा फलाना ढिकड़ा, मुझे आते ही नहीं वो चीज। भाई मैं आज भी छोटी गाड़ी में घूमता हूँ, गाड़ी में मैं ऑटो में चला जाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नीचे सड़क पे खड़े होकर वड़ा पाव खा लूंगा, मुझे उससे फर्क ना पड़ेगा। भाई जिंदगी Definitely. जहां से स्टार्ट करी, बेसिक्स मुझे मालूम है मेरी लाइफ के। तो अगर आपको एक सिंपल लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट, पोस्ट दिस, आई विल क्लोज दिस, अंडरस्टैंड योर बेसिक्स, स्टिक विथ योर बेसिक्स एंड फॉलो दोस बेसिक्स। आप ये सोचना आपके माँ बाप ने कितनी मेहनत करके आपको इस स्टेज तक पहुंचाया है। थोड़ा बहुत अगर आपने पैसा कमा लिया है तो ये मत सोचो कि हम ओवरनाइट रिच बन जाएंगे। मितेश को मैं पर्सनली जानता हूँ। मितेश भाई से जब मैं बात करता हूँ ना, तो मितेश भाई मुझे क्या बोलता है, मुझे 17 साल एफर्ट करने में लगे। ये लोगों को लगता है ना मैंने इतना पैसा कमा लिया, तो मैं 17 साल धक्के खाए बाजार में, तब जाके 4 साल में प्रॉफिटेबल बना। अगर मितेश भाई जैसा इंसान 17 साल धक्के खा के 4 साल में इतना प्रॉफिटेबल हो गया, तो आपको क्या लगता है आप उससे बड़ा बन जाओगे? पक्का बन सकते हो, पर इतने धक्के खाने की कैपेसिटी है आप में? अगर है तो करना, नहीं है तो भाई म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ बाजार में। इस बाजार को आके गाली मत देना, ये बाजार सबको पैसा देने के लिए रेडी है। सिर्फ आपका पेशेंस, सिर्फ आपका प्रिजर्वेंस, सिर्फ आप कितने टाइम मार्केट में रह सकते हो, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, सबसे पहले वो डिफाइन करना। रिटर्न मार्केट दे देगा। 140 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, जितने वॉर चलने देना, क्रूड का प्राइस 300 हो जाएगा, जाने देना, कोई फर्क ना पड़ेगा। 140 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान के जो 100 का नहीं 200 रुपए का भी पेट्रोल खरीदेंगे। शॉर्ट टर्म सारे इफेक्ट आएंगे। Stick with the markets. If you cannot do trading, go to investing. Stick for at least 10, 12 years, 15 years, 20 years. You will make very good money. There is no holy grail in this market. And I But can still guarantee. people search for it, no? But still people search for it. That's the problem. भाई अगर मुझे होली ग्रेल तेरे पास है तो मुझे दे दे, मैं कल से बंद कर दूंगा सब, मैं सारा पैसा उसमें डाल दूंगा। एक ही ट्रेड में डाल देंगे ना अपन, मैं भी, और 10 ट्रेड लेने even I के। am ready. So there is no holy I grail in this ask people market. I ask people to read holy books instead of reading. नहीं तो होली डीमैट अकाउंट में बन जाएगा, वो भी लाल रेड एकदम। Don't go for it. So there is no holy grail in this market. You need to judge who you are. आप खुद को जज करो, ये सोचो मैं क्या हूं, मैं कितना कैपिटल लॉस कर सकता हूं। पहले ये सोचो, कमाने का बाद में सोचो कि मेरा अगर इतना कैपिटल गया, एग्जाम्पल 10 लाख का है, लाख रुपया गया, मुझे परवाह नहीं है, मैं शांति से बैठा हूँ क्योंकि मेरी जॉब चल रही है, मैं कहीं से और से इनकम आ रहा है। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ तो मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई मैं आया भी क्यों हूँ। बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, किताब में लिखनी पड़ेगी। मैं ना सब कुछ किताब में लिख के सीखा। सो विद द एंडिंग रिमार्क,
Judge yourself who you are. Beyond that, there is nothing in this market. कुछ ना समझ में आए, जाके भगवत गीता पढ़ना. बाइबल में भी वही चीज लिखी है, गीता में वही चीज लिखी है, हर होली बुक्स में वही चीज लिखी है. सब वही चीज बोलते हैं. पहले खुद को समझो क्या हो, उसके बाद करने का सोचो क्या है क्या नहीं है. With this ending remark, know yourself, define your loss, forget about profits. So I'm ending this session. Very thanks everybody for joining. Definitely, Amit bhai. Probably from Thank you. Monday, from Monday or Tuesday, I'll have a total plan, what we are going to do. I'll have an email also where everyone will have access. So your all questions will be attended. If I'm not able to take your questions, it was my mistake. But from next time, all questions will be answered beforehand. Thank you everyone for joining. Jai Hind. Thank you, Amit bhai. Thank you, Preeti, Jai and Hind. everyone else. Jai Hind. Jai Hind. Thanks, Jai And Hind. have a thanks, good night. Avidya. Jai Hind. Good night. भैया जय हिंद. जय हिंद होता है जय हिंद, जय हिंद, जय भारत. Jai Hind. एंड नो गुड नाइट्स नथिंग. अगली बार से जय हिंद बोल के एंड करेंगे. Definitely. जी भैया. Okay.